ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة
ولا ممنوع وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا وترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يعموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أورأيتم
تعرفون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم منشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم فروح وريحان وجنات
ومن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات
السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم وبأيمانهم بشراكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. तिलावत इस महफिल का आगाज किया जनाबे अहमद रज़ा साहब, कारी अहमद रज़ा साहब ने। दुनिया की कोई भी किताब हो उसकी पेशानी पर, उसके फर्स्ट पेज पर लिखा रहता है कि आप लोग देखिएगा, अगर इसमें कोई गलती होगी तो बता दीजिएगा, हम अगले एडिशन में इसे सही कर लेंगे। लेकिन कुरान दुनिया की एकलौती किताब है जिसकी पेशानी पे लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी। ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं इसके बाद आज की तारीख पर रोशनी डालने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना कौसर अब्बास साहब क़िबला इमाम जुमा व जमात मंझनपुर कौशाम्बी से कि वो रौनक अफरोज मिंबर हों। अब हज़रत नारे सलवात से उनका इस्तकबाल फरमाएं। अल्लाहुम्मा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।
व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लदुन आदम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आपकी खिदमत में इस जश्न बाअज़मत की मुबारकबाद पेश करते हैं और जैसा कि हर साल आप देखते हैं कि शोरा के यहाँ आने से पहले तक कुछ बातें आपके गुजार करता हूँ और इस साल भी इंशाअल्लाह वही मुख्तसर वक्त होगा। कुछ ऐसे नुकात जो हमारे काम इंशाअल्लाह हैं उनकी तरफ इशारा करना है और गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस वक्त का जो मौजू इस महफिल से मुताल्लिक़ भी और इस तारीख़ से मुताल्लिक़ भी मामूलन जो बनता है और उसके ऊपर जो आम तौर से लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये मौजू इन तारीख़ों में चलने लगता है। दो तरह के ग्रुप्स फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं और कुछ कहना शुरू करते हैं कि ये तारीख़ें हैं ही इसीलिए कि दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर तबर्रा किया जाए और जो जो कहा जाए वह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दूसरी तरफ फौरन इस्लाह पसंदी के नाम पर एक आवाज़ उठती है कि नहीं, मुआशरे का माहौल ख़राब मत कीजिए, अमन और सलामती रहने दीजिए, फसाद मत फैलाइए। ये दो चीज़ें आमने सामने और दोनों ग्रुप्स के अपने फॉलोअर्स, दोनों नज़रियों के अपने फॉलोअर्स जो है वो अपने अपने नज़रिए का दिफा करना शुरू कर देते हैं। एक सलवात और पढ़ें बर मोहम्मद व आले। एक मरतबा सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले। हमने कुछ मसाइल इस तरह के इन तारीखों में ख़ास तौर से आ जाते हैं। एक ग्रुप है जो ये कहना शुरू करता है कि ये तारीखें और दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से नफ़रत और बेज़ारी और तबर्रा ये हमारा हक़ है और दीन का हिस्सा है और इसे उलमाए किराम ने भी बाकायदा फ़ुरूए दीन में शुमार किया है। और हम जब मकतब में तंजीम की किताबें पढ़ानी जब हमको शुरू की जाती हैं तो वहीं के ऊपर दर्जा अतफ़ाल से ज़ाहिरन ये मामला जो है वो शुरू हो जाता है। वहाँ के ऊपर जब फ़ुरूए दीन गिनाए जाते हैं, सवाल ये है कि जब तक हम किसी चीज़ को समझ न लें कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब तक उसके ऊपर सही या गलत होने का हुक्म लगाया ही नहीं जा सकता। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि गज़ल पढ़ी जानी चाहिए कि नहीं, तो पहले हमें यह तय करना पड़ेगा कि गज़ल से मुराद क्या है, गज़ल कहते किसे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मनक़बत होनी चाहिए या नहीं, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम मनक़बत कह किस चीज़ को रहे हैं। जब तक ये वाज़े ना हो कि ये असल में है क्या चीज़, तब तक उसके ऊपर हुक्म लगाना अपने आप में यही गलत बात हो जाएगी।
हम बात करते हैं तवल्ला और तबर्रा की। तवल्ला पे जाहिर है कि कोई बहस ही नहीं है। जो कुरान की आयत मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की, इस पर इत्तेफाक है मुस्लिमीन का कि तवल्ला बहरहाल जो है वो, अलबत्ता ये लफ्ज़ तवल्ली और तबर्री है, ये भी जो है वो चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस तरह से मशहूर है और अब हम ये कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान में यूं ही बोला जाता है, अब हम ये कह सकते हैं, लिहाजा वो जो बोला जाता है वही लफ्ज़ मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तवल्ला और तबर्रा ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तवल्ला यानी मोहब्बत करना, तबर्रा यानी नफरत और बेजारी, ये इसके लुग़वी माना है। इस्तिलाह में जब उलमा इकराम ने इसको ज़रा सा डिस्क्राइब किया, थोड़ा सा और वाज़े किया और तफसील इसकी बयान की, तो फरमाया कि खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की मर्जी के लिए जो लोग भी किसी फेल को अंजाम देते हैं उन लोगों से मोहब्बत करना, यह तवल्ला है। और खुदा की नाराजगी का सबब जिन लोगों का भी फेल बनता हो उनसे नफरत करना, यह तबर्रा है। ये कुल्ली तौर पर तारीफ करने की कोशिश की गई। अब जाहिर है कि बहुत मैं इसमें डिटेल में नहीं जा पाऊंगा कि किसने क्या कहा, लेकिन ये तकरीबन एक कुल्ली तौर पर तारीफ हमारे हाथ में आ जाती है तवल्ला और तबर्रा की। तवल्ला हमें करना है, जाहिर है कि मबदए हस्ती जो ज़ात है खुदावंद आलम की, परवरदिगार से मोहब्बत करना है। और चूंकि उस परवरदिगार से मोहब्बत करते हैं तो अब उसके नबी से भी मोहब्बत होगी, उसके भेजे हुए आइम्मा से भी मोहब्बत होगी, उसकी किताबों से भी मोहब्बत होगी, उसके दीन से भी मोहब्बत होगी, उसके कवानीन से मोहब्बत होगी। ये तमाम चीजें तवल्ला के जुमरे में आ जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अगर हम बात करें कि तबर्रा क्या चीज है, तबर्रा किससे किया जाएगा, तो जाहिर है कि हमारी चूंकि मोहब्बतें खुदा के लिए, उसके रसूल के लिए, उसके इमाम के लिए, तो अब इनके मुकाबले में यानी खुदा के मुकाबले में आने वाला कोई होगा उससे भी इजहार बरात है, नबी के मुकाबले में आने वाला होगा उससे भी इजहार बरात है, इमाम के मुकाबले में आने वाला होगा उससे भी इजहार बरात है, यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। हत्ता यह सिलसिला यहां पर नहीं रुकेगा, चूंकि तवल्ला का सिलसिला इमाम पर आकर खत्म नहीं होता, तवल्ला का सिलसिला और आगे बढ़ता है। जो भी मुहिब्बाने मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं उनकी मोहब्बत भी तवल्ला का हिस्सा है। तवज्जो फरमाएं, यानी खुदा से शुरू होकर नबी, आइम्मा, असहाब आइम्मा या वो शियान आइम्मा, इन तक ये सिलसिला आता है, मुहिब्बीन तक आता है, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तक ये तवल्ला आएगा। अब जब तबर्रा शुरू होगा तो खुदा के दुश्मन पर भी, रसूल के दुश्मन पर भी, आइम्मा के दुश्मन पर भी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों के दुश्मनों पर भी होगा। तवज्जो फरमाएं, तो तबर्रा जो किया जाएगा वो वहां से शुरू होकर यहां तक आएगा। अब सवाल यह है कि तबर्रा किससे किया जाए। इसमें जरा सा लोगों को यहां पर आकर परेशान करने की कोशिश की जाती है कि तबर्रा हमें करना किससे है। यह बिल्कुल तय बात है कि तबर्रा और तवल्ला ये दोनों दीन का हिस्सा हैं और इसमें किसी को कोई शक व शुबहा नहीं है। जो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर बोलता है वो भी ये नहीं कहता कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। बात आकर इस पर टिकती है कि किस पर हो और किस पर ना हो, वरना इसके ऊपर तकरीबन लोग इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, कुछ इस तरह के भी बेवकूफ हैं जो कहते नहीं हमें किसी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो फिर उनको बिस्मिल्लाह से पहले औज़ बिल्लाह पढ़ना छोड़ देना चाहिए। अगर आप ये कहने पे आ जाइएगा कि नहीं हमें किसी से नहीं करना है, खुदा जाने और उनके अमाल जाने, इस तरह की सेकुलर गुफ्तगू अगर कोई करने की कोशिश करने लगे तो फिर उससे हमें कहने की जरूरत है कि फिर ठीक है,
फिर सबसे पहली जो बुनियाद है, जहां से शुरुआत हो रही है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम जो कह रहे हैं, लान का सिलसिला यहीं से खत्म होना चाहिए। अर्ज किया आपकी खिदमत में, एक सलवात और पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अगर हम इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता में स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेकर चल रहा हूं कि ये बात पूरी तरह से हमारे जवानों के जहनों में बैठ जाए, चूंकि ये अपने आप में एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है कि जिसे मुतअद्दिद मकामात पर बार बार उछाला जाता है। कभी इस तरफ से ज्यादती होती है, कभी उस तरफ से ज्यादती होती है। लिहाजा हमें क्राइटेरिया समझने की जरूरत है, वो मेयार समझने की जरूरत है। ये है क्या, ये हम समझ रहे हैं, ये जायज है कि नाजायज है। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर लान किया है। लानत का ईजाद शियों ने किया है या कुरान मजीद में है? अगर लानत का ईजाद किया हो शियों ने, अपनी तरफ से एक लफ्ज बनाया हो, तो दलील शिया देंगे। अगर लफ्ज़ें खुदा रख रहा है तो दलील फिर खुदा से मांगना पड़ेगा। अगर परवरदिगार आलम कुरान में जिक्र कर रहा है तो अब दलील खुदा दे। लिहाजा इस पर तो किसी को शक व शुबहा होना ही नहीं चाहिए अगर वो मुसलमान है। एक और सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले। अगर इंसान मुसलमान है तो उसे इस पर किसी को शक व शुबहा होना ही नहीं चाहिए कि लानत होनी है कि नहीं होनी। मुस्तहिक़ीन लानत पर लानत करना ये परवरदिगार का अमल है। मुस्तहिक़ीन लानत मैं कर रहा हूं, जो भी लानत के मुस्तहिक़ हैं उन पर लानत किया जाना ये अल्लाह का अमल है, अल्लाह के नबी का अमल है और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का। और फिर जब ये चीज हमें इन तीनों जगहों पर नजर आ जाए तो जो अमल खुदा और रसूल और अइम्मा में नजर आ जाए उसी अमल की पैरवी करना यही तो शियों की जिम्मेदारी है। इसी को तो शियत कहते हैं। एक और सलवात पढ़ लें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो यही तो तशय्यो है जो खुदा कर रहा है, जो खुदा करने का हुक्म दे रहा है, जो उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है, जो अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने किया। हमें उसी अमल को अपनी जिंदगी बनाना है, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना है। थोड़ी देर मुतवज्जे हैं, मैंने पहले कहा बहुत ज्यादा देर तक इंशाअल्लाह आपके दरमियान हायल नहीं होना है। तो परवरदिगार आलम जो अमल अंजाम दे रहा है, जो उसका नबी अंजाम दे रहा है और जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर रहे हैं, हमें उस अमल को करना है और इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। अब सवाल ये है कि ये अमल कि जिसे तबर्रा कहा जा रहा है, मैंने कहा बेजारी। एक सलवात और पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस अमल को किबला क्या कहा गया? बेजारी। दुश्मनों से, किसके दुश्मन? खुदा के दुश्मन, उसके रसूल के दुश्मन, आइम्मा के दुश्मन, शियों के दुश्मन, इन सबों से हमें क्या करना है? बेजारी करना है। बेजारी करने का तरीका क्या होगा? बेजारी करने के 3 तरीके हैं। तबर्रा के लिए जब उलमा ने लिखा, मैं माइक से और ये रिकॉर्डिंग हो रही है वहां के ऊपर बात कर रहा हूं तो मुझे पता है मैं क्या बात कह रहा हूं। जब उलमा ने बेजारी के बारे में, तबर्रा के बारे में जिक्र किया तो कहते हैं इसके 3 मरहले हैं। पहला मरहला है कल्बी तौर पर इंसान को इजहार बेजारी करना है, कल्बी तौर पर।
दूसरा मरहला है इंसान को अमली तौर पर बेजारी करना है। तीसरा मरहला है कि जबान से बेजारी करना है। अब ये कल्बी तौर पर बेजारी जो होगी, जाहिर है कि हमें देखना होगा कि ये कल्बी तौर पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने कैसे किया। इसको बहुत ज्यादा सीरत से समझना मुश्किल है, चूंकि पहले ही कह रहा हूं कल्बी मसला है। लिहाजा इसको हम यूं समझ सकते हैं कि अपने दिल से किसी भी गलत चीज को गलत मानना और उससे नफरत करना, यह कल्बी तबर्रा है। कल्बी तौर पर किसी गलत चीज को गलत मानना और फिर उससे नफरत करना, यह कल्बी तबर्रा होगा। एक और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद। दूसरा तबर्रा जो होगा वो होगा अमल के जरिए से, अमली तबर्रा, यानी वो चीजें जो दुश्मनान अहले बैत में पाई जाती हैं उनसे अपने आप को रोकना। देखिए यहां पर जरा सा लोग खल्त मल्त करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात कहना शुरू करते हैं जब हम दुश्मने अहले बैत से बेजारी करना चाहते हैं तो हमें शख्स से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए उसकी सिफतों से। जो गलत काम वो कर रहा है हम उससे रुक जाएं, यही तबर्रा है। जो गलत काम उसने अंजाम दिए हैं हम वो ना करें। उसने शराब पी है तो हम ना पिए, उसने झूठ बोला है तो हम ना बोलें, उसने ग़ीबतें की हैं, बदकारी की हैं, फिस्को फुजूर किया है तो हम ना करें, यही तबर्रा है। नहीं साहब, ये तबर्रा की आधी अधूरी तारीफ की जा रही है। अगर आप कहना चाहते हैं जुर्अत है तो फिर कहिए कि तबर्रे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर ये नहीं कह सकते तो फिर मुकम्मल तारीफ बयान कीजिए। लफ्ज़े तबर्रा है क्या चीज? ये जितनी चीजें आपने गिनाई ना, शराब अल्लाह ने पहले हराम कर रखी है, झूठ पहले हराम है, बदकारी पहले हराम है, चुगलखोरी पहले हराम है। अल्लाह ने सरीही तौर पर इसके अहकाम बयान कर दिए, फिर ये अलग से इस्तिलाह की जरूरत क्यों पड़ी? एक अलग से इस्तिलाह रही है ना। वाजिबात अलग हैं, तवल्ला अलग है, मुहर्रमात अलग हैं, तबर्रा अलग है। इन दोनों को आपस में मिलाने की जरूरत नहीं है। लोग यहां पर आकर कहने की कोशिश करते कि हमें क्या मतलब, कौन क्या था जाने दीजिए, किसी का जिक्र करने से फायदा क्या है, उनके सिफात बयान कर दीजिए, बात मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, मसला इतना नहीं है, मसला ये है कि यजीद की ज़ात पे भी लानत है, यजीद की ज़ात पे भी लानत है, उसके सिफात पर भी लानत है, और ज़बानी तौर पर उसकी ज़ात से भी इज़हार बेज़ारी होगी, उसके सिफात से भी इज़हार बेज़ारी होगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तशरीफ लाए, इस बार आप जरूर सुनिएगा। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए उलमा की मौजूदगी में थोड़ा सा और तक़वियत मिल जाती है कि इंशाअल्लाह कहीं पर कोई मामला होगा तो फौरन मुतवज्जे किया जाएगा। तो मामला इस तरह से है कि इसे मैंने कहा दो तरह के गिरोह आए, और उन्होंने एक गिरोह वो आया कि जिसने कहा कि नहीं, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दुश्मन है वो दुश्मन है, उससे रत्ती बराबर कोई गुंजाइश नहीं। ये बात जबानी तौर पर और यहां खिताबत में नारा लगवाने के लिए तो ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। प्रैक्टिकली ये चीज मुमकिन ही नहीं है।
कि जो भी दुश्मन हैं उनसे किसी तरह का कोई मामला नहीं, बस दुश्मनी है तो है, बेजारी है तो है, तबर्रा है तो है, खुलेआम होगा। तो ये आपका अपना बनाया हुआ दीन है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का नहीं है। अगर खुलेआम तबर्रा करना ही मकसूद अहले बैत होता तो कभी भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सनमे कुरैश न कहते, नाम जिक्र कर देते। ये कुरैश के दो बुतों का तस्करा किया, वजिब्तैहा व तागूतैहा। ये जो लफ्जें इस्तेमाल की जा रही हैं वो दोनों जिब्तो, दोनों तागूत, ये लफ्जें बता रही हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत है क्या। याद रखिएगा, दो मरहले हैं। एक मरहला वो है कि जहां पर उलमाए कराम ने कहा कि किसी भी दीन और मजहब के मुकद्दसात की तौहीन नहीं होगी, जायज नहीं है। ज़हन उलझने ना पाए, जरा सा मेरे साथ रहिएगा। एक तरफ उलमाए कराम ने कहा, मराजे-ए-ज़ाम की बात कर रहा हूं, फुक़हा की बात कर रहा हूं, उन्होंने आवाज दिया और ये अपने पास से नहीं कहा, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के मुताबिक है, उनकी सीरत के मुताबिक है। एक तरफ कहा कि मुकद्दसात की तौहीन नहीं की जाएगी। वही उलमा जो कह रहे हैं कि मुकद्दसात की तौहीन नहीं की जाएगी, वही उलमा जब आकर फेहरिस्त मुरत्तब करते हैं तो जहां वाजिबात में नमाज को रखते हैं, जहां रोजे को रखते हैं, जहां हज व खुम्स व ज़कात को रखते हैं, वहीं तवल्ला भी रखा जाता है, तबर्रा भी रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि उलमाओ मराजे तवल्ला तबर्रा के मुखालिफ और खिलाफ नहीं है। ये हमारे और आपके समझने का मसला है कि हम तवल्ला, हम तबर्रा अपने किसी अमल को समझ रहे हैं। तबर्रा दीन का हिस्सा है। अगर दीन का हिस्सा होगा ना तो फिर दीन के हिस्से की तशरीह भी उलमा करेंगे, तरीका भी उलमा बताएंगे, उसके शराइत भी उलमा ही मुअय्यन करेंगे। एक और सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दो चीजें एक साथ इस्तेमाल होती हैं, दो चीजें हमारे यहां। एक है लान, लानत करना किस पर? दुश्मनान अहले बैत पर। अब ये दुश्मन दो तरह के हैं, मुकद्दसात अहले मुकद्दसात अदियान या मुकद्दसात अहले सुन्नत या मुकद्दसात मज़ाहिब, जिसकी भी आप बात कर लें। इन मुकद्दसात का मतलब क्या है? इसका कोई क्राइटेरिया होगा, कोई मेयार होगा। मुकद्दस है क्या? मुकद्दसात कहते किसे हैं? अपने तौर पर अगर हम सिर्फ ये मानकर बैठ जाएं कि हर वो चीज जिसे आप मुकद्दस बता दीजिए हम उसे मुकद्दस मानकर चुप हो जाएं, तो फिर तो अब इसके बाद न यजीद का नाम लिया जा सकता है, न शिम्र का नाम लिया जा सकता है, न उमर साद का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि ये सब के सब कहीं न कहीं किसी न किसी के लिए मुकद्दस हो गए हैं। कभी किसी के ख्वाब में आके मुकद्दस हो गए, कभी किसी से खूनी रिश्ते की बुनियाद पर मुकद्दस हो गए। ये मुकद्दसा जिनकी बात उलमाओ मराजे कर रहे हैं ना, ये उन मुकद्दसात की बात है जिस पर मज़ाहिब और अदियान के अफराद नहीं, उलमा मुत्तफक हो। हर जमाने में किसी एक खास जमाने की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यजीद जैसे मलऊनों को न कल मुकद्दस समझा जा रहा था, न आज मुकद्दस समझा जा रहा है। न कल ये मुकद्दस थे, न आज मुकद्दस हैं। यजीद जैसों का नाम बताया जाएगा। बकिया वो अफराद के जिनके तही एक सलवात और पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यजीद जैसे अफराद का तस्करा किया जाएगा, लेकिन हर वो फर्क
कि जो शामिल है दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में, उस पे हमें तबर्रा करना है। याद रखिएगा, ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है, फुरूए दीन का भी हिस्सा है। बगैर तबर्रा के मुमकिन नहीं है कि इंसान हकीकी तौर पर तवल्ला अंजाम दे सके। आगे बहजत से बड़ी सरसरी तौर पर किसी ने 2 लफ्जों में जवाब मांगा। आगा बताएं, लान में ज्यादा सवाब है या दुरूद में? लफ्जें यही थी। आगा बताइए, लान में ज्यादा सवाब है या दुरूद में? लानत करें तो ज्यादा सवाब मिलेगा, या मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात भेजे तो उसमें ज्यादा सवाब मिलेगा। आगे बहजत ने भी सवाल करने वाले के अंदाज के मुताबिक 2 लफ्जों में जवाब दे दिया। कहा, याद रखो, पहले तखलिया है फिर तहलिया है। पहले अपने आप को नजासतों से पाक करने की जरूरत है। पहले नजासतों से खुद को पाक कर लो। लान फकत और फकत गालियां देने का नाम नहीं है। लान का मतलब ये है कि दिल भी पाक हो जाए, अमल भी पाक हो जाए, जबान भी पाक हो जाए। अब जब ये सब का सब पाक हो गया तो अब मोहब्बत अहले बैत दिल में भी उतर जाएगी, अमल में भी उतर जाएगी, जबान पर भी आती रहेगी। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा पहले मरहले पर इंसान को अपने आप को पाको पाकीज़ा करने के लिए ला इलाह कहना पड़ेगा, तब इल्लल्लाह माना पैदा करेगा, तब इसका मफहूम समझ में आएगा। लिहाजा तवल्ला और तबर्रा ये दोनों दीन का हिस्सा है। किसी ने आकर कहा, मौला फला आदमी आपसे मोहब्बत तो करता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन आपके दुश्मनों से इजहारे बेजारी नहीं करता। इमाम ने फरमाया, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, उसका हमसे कोई राबता नहीं। कहीं के ऊपर इमाम ने इसी जुमले को दूसरी तरह से इरशाद फरमाया। आने वाले ने आकर पूछा कि मौला कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके यहाँ आपसे मोहब्बत तो पाई जाती है, लेकिन आपके दुश्मनों के तई जरा सा नरमी पाई जाती है, यानी इतना बुरा भी नहीं समझते। कहते ठीक है, सारी बुराइयां ही तो नहीं हैं, कुछ अच्छाइयां भी। मसलन इमाम ने कहा, ऐसा आदमी, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं और ऐसे के पीछे नमाज जायज नहीं है। ऐसे आदमी के पीछे नमाज न पढ़ना। पता चला अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों के लिए रत्ती बराबर दिल में कोई नर्म गोशा पैदा हुआ, छठे इमाम ने फरमाया जन्नत की बू हराम हो जाएगी ऐसे के ऊपर। जन्नत की बू नहीं सूंघ सकता, हराम है। तो मौला इसका मतलब यह हुआ कि हमें तवल्ला करना है यकीनन। अब यहाँ से जरा सा गौर से सुने मेरा मजमा, हमें तवल्ला करना है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, उनके चाहने वालों से। तबर्रा करना है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों से, अल्लाह के दुश्मनों से, नबी के दुश्मनों से, अहले बैत और उनके शियों के दुश्मनों से भी। जो भी दुश्मन है उससे इजहार बेजारी करना है। कैसे तबर्रा होगा? कल्बी तौर पर दिलों में नफरत का एहसास होना चाहिए। पहला मरहला अर्ज कर दिया, कल्बी तौर पर दिल में एहसास होना चाहिए कि ये इंसान गलत है और हम इसे पसंद नहीं करते। नफरत की हद तक कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, पहला मरहला। दूसरा मरहला ये कि जब दिल किसी से नफरत करने लगे ना, तो फिर उसकी आदतें भी अच्छी नहीं लगती। आपका कोई कितना ही अजीज दोस्त क्यों न रहा हो, ताल्लुकात खराब हो जाएं तो वही जिसका कल तक साथ आपको बड़ा अच्छा लगता था, अब ना उसका चेहरा अच्छा लग रहा है, ना उसकी हंसी अच्छी लग रही है, ना उसकी आवाज अच्छी लग रही है। तो जब तबर्रे का मरहला आ जाएगा, कल्ब में दिल में नफरत पैदा हो जाए, तो अमल से खुद ब खुद बेजारी पैदा होनी शुरू हो जाए। और अगर अमल में बेजारी न नजर आए तो फिर दिल को जांचने की जरूरत है। अब मरहला, ये दोनों मरहले बड़े आसान हैं। दिल से नफरत करना, क्या मुझे कोई इस चीज से रोक सकता है? किबला,
मैं जिससे जी चाहे दिल से नफरत करूं, ये मेरे दिल का मामला है ना, इससे तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा इस पर कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, किसी तरह का कोई मसला नहीं। दिल के मामले में किससे नफरत करना है, किससे मोहब्बत करना है। दूसरा मरहला अमल की सूरत में आ गया, किसकी सीरत पर चलेंगे, किसकी सीरत से नफरत करेंगे। इसमें भी बहुत ज्यादा मसाइल नहीं आएंगे। मसला तीसरे मरहले पर आता है कि अब जबान से जब हमें इजहार करना है तो अब जबान के मरहले पर जरा एहतियात की जरूरत है। किसे कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते, कितना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये तमाम हुदूद आया शरीयत ने बयान किए या नहीं, फुकहा ये बयान करेंगे या अवामुन नास ये तय कर लेगी। अब हमें यहाँ के ऊपर रुक कर जरा सा समझने की जरूरत है। जबानी तौर पर जब हम बराअत के मरहले पर आएंगे तो दो लफ्ज़ हैं, आसान जबान में कह दूं, एक है गाली देना, एक है लानत करना। लानत दीन का हिस्सा है, गाली से दीन का कोई ताल्लुक नहीं। लानत दीन का हिस्सा है, गाली से दीन का कोई ताल्लुक नहीं। कि आप कहें कि दीन के नाम पर नहीं, गाली हराम है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने कभी भी गाली देने वालों को पसंद नहीं फरमाया। वो जुमला अमीरुल मोमिनीन का बड़ा मशहूर है जंग सिफ़ीन के मरहले पर, कि जब लश्कर शाम के लोगों को अली वालों ने एक मर्तबा गालियां देना शुरू किया, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम सब्बाबीन में से हो जाओ, गालियां देने वालों में से हो जाओ। अली बता रहे हैं कि गाली देने वाले का ताल्लुक कभी भी अली वाले से नहीं हो सकता। आप अपने एरिए के लोगों को छोड़ दीजिए, ये तो खुद अली के मुकाबले में तलवार लेके लड़ने आए हैं। अब इससे बड़ी नासबियत और क्या होगी? अब इससे बड़ी नासबियत तो कुछ नहीं होगी ना। जाहिर बजाहिर बिल्कुल सामने तलवार लेकर आ गए हैं लड़ने के लिए, उसके बावजूद अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं गालियां देने का हक नहीं है। लेकिन वहीं के ऊपर लानत से भरी हुई आयात, लानत से भरी हुई ज़ियारतें और तमाम दुआएं जिसमें दुश्मनाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए कसरत के साथ लानत भेजी गई है। इसका मतलब ये है कि अहले बैत हमसे चाहते हैं कि हम दुश्मनाने अहले बैत से जब इजहार बेजारी करने जाएं तो लानत के जरिए से होना चाहिए। लानत कैसे की जाएगी? क्या नाम लेकर माइक पर खुल्लम खुल्ला लानत करें? अब अगर मैं इसे जरा सा और वाज़े कहूं, अगर हम ये बात कहने पे आए कि माइक पर नाम लेकर खुल्लम खुल्ला लानत करने पे आए, तो फिर याद रखिएगा दीन कभी भी फसाद को पसंद नहीं करता। दीन किसी ऐसे अमल की तायीद नहीं करता जिससे झगड़ा होने का फसाद होने का इम्कान हो। अल्हम्दुलिल्लाह यही तो कमाल है कि हम नाम किसी का नहीं लेते, मगर हमारी कौम को सबके नाम पता है। यही तो कमाल है ना कि हम नाम किसी के नहीं लेते, लेकिन हमारी कौम को सबके नाम पता है। हम कहते हैं कातिलाने ज़हरा पे लानत। कौम को पता होता है आग लकड़ी लाने वाला कौन था, जलाने वाला कौन था, पैर से मारने वाला कौन था, कोड़ा चलाने वाला कौन था, ये सब शामिल हो जाते हैं। हमारे लिए बस यही काफी है। सिफतें यहाँ से बयान होंगी, ज़हनों में नाम आते चले जाएंगे। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब एक जुमला यहां पर और कह दूं इजाजत से। इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूं नाम नहीं लेंगे तो अब इसका मतलब हम इतनी एहतियात बरतने लगे कि अब अबू सुफियान का नाम भी न लें। मैंने कहा ना मेयार तय होना चाहिए ना। अब इसका मतलब ये नहीं है, कुछ ऐसे मुकद्दस हैं कि जिनके नाम पर हसास है कौम तो ठीक है, हम नाम नहीं लेते, लेकिन सिफतें बयान की जाएंगी। लेकिन अब इतना भी उम्मीदवार ना हो जाइएगा
कि हम अबू सुफियान का नाम लेना भी छोड़ दें, हम मुआविया का नाम लेना भी छोड़ दें, हम यजीदो, उमर सादो, शिम्र जैसों का नाम लेना भी छोड़ दें। नहीं नहीं, ये नाम लिए जाते रहेंगे, इसलिए कि ये कभी भी मुक़द्दसात अहले सुन्नत में शामिल नहीं थे। ये आजकल के मौलवी अगर इन्हें मुक़द्दस बनाने पर उतर आए तो फिर मैंने कहा शैतान भी मुक़द्दस हो जाएगा। मेयार आजकल के मौलवी नहीं है, मेयार बुजुर्ग उलमाए अहले सुन्नत जिनका एहतराम उनकी नजरों में है और जिनको उन्होंने मुकद्दस बनाकर पेश किया, हम उनको उनके तकद्दुस के तहत, और हम उन्हें मुकद्दस नहीं समझते, ये याद रखिएगा, हम उन्हें मुकद्दस नहीं समझते, आप उन्हें मुकद्दस समझते हैं, तो आपके एहतराम में हम उनका नाम नहीं ले रहे, वरना हमारे यहाँ उनका कोई तकद्दुस नहीं। दुश्मनाने अहले बैत का हमारे यहाँ कोई तकद्दुस नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिलों का हमारे यहाँ कोई तकद्दुस नहीं, ज़हरा के कातिल का हमारे यहाँ कोई तकद्दुस नहीं। हाँ, जो हुक्म है वो ये कि नाम नहीं लिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि इस नाम से अगर आपको हसासियत है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये कहना शुरू कर दीजिए कि ना, चूंकि आप अगर नाम नहीं ले रहे तो फिर सिफतें भी बयान ना कीजिए, अगर आप नाम नहीं ले रहे तो तारीख भी ना पढ़िए, अगर आप नाम नहीं ले रहे तो फिर वाक़ियात भी जिक्र ना कीजिए, तो फिर एक काम कीजिए, कल से हम अपना मजहब बदलकर आपके मजहब पर आए जाते हैं। मसला तो यही है कि दो जिम्मेदारियां एक साथ हैं, ना मुआशरे में फसाद फैलने पाए और ना ही शिया कौम जाहिल रहने पाए। हम जैसों पर, और वो हर आदमी जो जानता हो उस पर वाजिब है कि अपने कौम के बच्चों को तारीख की हकीकतें और अकीदे मोहम्मद आले मोहम्मद बताता रहे। अगर नहीं बता रहा तो फिर दीन नहीं पहुंचा रहा, कोताही कर रहा है दीन में। मकसद अहले बैत अलैहिस्सलाम में कोताही है, लिहाजा जरूरी है कि सिफतों के जरिए, इशारों के जरिए, किनायों के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी ये काम कर रहे थे, आज भी ये काम कर रहे हैं। बातें पहुंचनी बहुत जरूरी है, अगर ये बातें ना पहुंचेंगी तो आने वाले वक्त में यही होगा कि फिर लोग कहना शुरू कर देंगे बहरहाल ज़ौजाए रसूल हैं। नहीं, पता होना चाहिए रसूल की ज़ौजा होना ये फकत एहतराम के लिए काफी नहीं है, उस ज़ौजा का वफादार होना जरूरी है। फकत और फकत रसूल की ज़ौजा होना ये एहतराम के लिए काफी नहीं है, बल्कि उसका वफादार होना चाहिए, उसको हक पे होना चाहिए, उसको नबी के साथ अमानतदार होना चाहिए। बेईमानों का कोई एहतराम नहीं है, चाहे ज़ौजा हो जाए, चाहे ससुर हो जाए, चाहे मामू हो जाए, जितने रिश्ते चाहे बनाते चले जाइए, किसी रिश्ते का कोई एहतराम नहीं है। जो भी एहतराम है ना वो नबी से वफादारी की बुनियाद पर है, नबी से वफादारी की बुनियाद पर है ना एहतराम। एक सलवात और पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। 9 रबीउल अव्वल याद रखिएगा, ये जो 9 रबीउल अव्वल आती है ना, उसके बाद ये महफिल, जो लोग आपसे कहना शुरू करते हैं कि इस तारीख में जो जी चाहे कहिए, नाचना गाना कल भी हराम था आज भी हराम है, गाली गलौज कल भी हराम था आज भी हराम है, फोशियात कल भी हराम था आज भी हराम है। जो चीजें दीने मोहम्मदी में कल तक हराम थी वो आज हलाल नहीं हो गई। इस तारीख में फर्क क्या है? कल तक मोहम्मद आले मोहम्मद रो रहे थे तो हम भी रो रहे थे, आज मोहम्मद आले मोहम्मद हंसने लगे तो हमने भी हंसना शुरू कर दिया। ये तो मोहम्मद आले मोहम्मद पर एक शिया का काम ये है कि उनके चेहरों के ऊपर नजरें जमी रहें, अगर वो उनकी आंखों से अश्क जारी हो तो इस शिया की भी आंखें नम हो जाएं, उनके लबों पर मुस्कुराहट आ जाए तो इस शिया की खुशी के लिए यही काफी है। याद रखिएगा
किसी भी हराम फेल का कोई ताल्लुक महफिल से नहीं है, किसी भी हराम फेल का कोई ताल्लुक जश्न से नहीं है। जो भी आपसे कहना चाहे हदीस में है झूठ बोल रहा है, जो कहे रवायत है झूठ बोल रहा है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम पर कोई भी अल्लाह की मासियत हलाल नहीं होती। जो हराम है वो हराम रहेगा इला यौमिल क़ियामा। ये तो रसूल अल्लाह की सीरत है, ये तो रसूल अल्लाह की शरीयत है, ये दीन है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुश्मनाने अहले बैत से इजहार बरात करें। कैसे? 3 तरह से, कल्बी तौर पर भी, फेल से भी, यानी जो जो आदतें वहां पाई जा रही थी, जो वो कर रहे थे वो हम ना करें। तो क्या वो खाना खा रहे थे हम ना खाएं, वो कपड़ा पहन रहे थे माज़अल्लाह नहीं, जो गलत काम वो कर रहे थे उनसे बेजारी करना है, उस चीज को छोड़ना है। ये बात समझ में आनी चाहिए। लिहाजा अब अगर हमें तो इजहार बेजारी करना है, आखिरी मरहले पर एक पैगाम देकर बात को खत्म करना चाहता हूं। एक पैगाम बहुत जरूरी है आज के इस दौर में। मसला ये था कि हम अभी तक ये बता रहे थे, और ये बताने की बात नहीं, ये बिल्कुल मुसल्लमात तशय्यो में से है कि दुश्मनाने अहले बैत से बराअत ये दीन का हिस्सा है। ये बताते बताते बाज लोगों ने कहा नहीं बहुत ज्यादा शदीद ना हुआ जाए। ठीक है, शिद्दत किसी भी फेल में अच्छी नहीं होती। लोगों ने इस शिद्दत को कम करने के लिए इतना कम किया कि लोगों के ज़मीर ठंडे पड़ने लगे, एहतराम की बातें होने लगी। गैर मजमू में जाने दीजिए, अपनों के दरमियान भी लान तान से रोका जाने लगा। याद रखिएगा जो भी ये काम कर रहा है ना, वो आपको दुश्मनाने अहले बैत से करीब करने की कोशिश कर रहा है। तरीका अहले बैत का होगा जो अहले बैत ने बताया है, लेकिन इस फेल से रुका कभी नहीं जा सकता। यहां तक हम आ गए, लेकिन अब एक नया दौर शुरू हुआ। अभी तक मसला इसी में फंसा हुआ था कि हम क्या करें, दुश्मनाने अहले बैत के लिए लान का क्या हुक्म है, तबर्रे का क्या हुक्म है, बेजारी का क्या हुक्म है। लेकिन अब एक नया मसला हमारी कौम के दरमियान आ गया, और वो क्या है? वो ये मसला है कि अपने ही लोग अपनों को न जाने क्या क्या कहने लगे। अपने लोग अपनों को ही न जाने क्या क्या कहने लगे। सिर्फ एक रवायत पढ़ूंगा इमाम की, बात मुकम्मल हो जाएगी। न जाने अपने ही लोगों ने अपने लोगों को क्या क्या कहना शुरू कर दिया। आए बाज ने कहा ये मुकस्सिर हैं, ये अहले बैत के फला फजाइल नहीं मानते, ये उनकी मार्फत नहीं रखते। बाज ने कहा ये गाली हैं। अपने तौर पर एक दूसरे के बारे में शियों की बात कर रहा हूँ, उलमा की बात कर रहा हूँ, अवाम की बात कर रहा हूँ, ये सब इसमें मुलव्विस हैं। ये सब के सब मिलकर एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे देने लगे, एक दूसरे को दीन से बाहर बताने लगे। किस बुनियाद पर? मेरे दिल में जो मारिफत है, गौर से सुने मेरा मजमा, मेरे दिल में जो मारिफत है वो दूसरों के पास नहीं है। लिहाजा अब जब मैं उन्हें देख रहा हूं तो उन्हें मुकस्सिर और दुश्मन की नजर से देख रहा हूं। दुश्मने अहले बैत की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया, उनकी सफ में लाकर, और उस फहरिस्त में शामिल कर दिया। याद रखिएगा, एक आदमी छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी खिदमत में एक आदमी है, खादिम है, किताब काफी से रवायत है, दूसरी जिल्द है, किताब ईमान वल कुफ्र की हदीस है। इमाम अलैहिस्सलाम का खादिम है। इमाम ने उसे किसी काम के लिए भेजा है। बहुत गौर से सुनिएगा इस रवायत को। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उन हालात को बिल्कुल इमाम ने अपने जमाने में हल कर दिया। इमाम ने किसी काम से भेजा है, वो काम करके वापस आया। इमाम खबर लेने आए कि तुमने वो काम सही तरीके से अंजाम दे दिया या नहीं, उससे डिटेल ले रहे हैं। तमाम तफसीलात उससे लेने के बाद वो खुद कहता है खादिम कि हम बैठे थे, इमाम से गुफ्तगू होने लगी, इमाम से बात होने लगी, और गुफ्तगू होते होते कुछ लोगों का तस्करा इमाम ने किया। बादे हमदे परवरदिगार, पहले खुदा की हमद की और उसके बाद कुछ लोगों का तस्करा किया, एक गिरोह का, एक ग्रुप का तस्करा किया। जब इमाम ने उस ग्रुप का तस्करा किया तो ये जो खादिम था, ये जो इमाम का चाहने वाला था, जिसने इमाम के लिए अभी अभी कुछ किया था, जिसकी रिपोर्टिंग इमाम को ये दे रहा था रिपोर्ट बनाकर, उसने कहा कि मौला
इनकी बात ना कीजिए, हम इनसे जो है वो इजहार बरात करते हैं। किससे कहा? इमाम से। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कौम का तस्करा किया, इसने कहा हम जो है वो इजहार बरात करते हैं इनसे। इनका तस्करा जो है वो जब हमारे सामने आता है, इमाम ने कहा कि इजहार बरात करते हो? कहा मौला। कहा तुम जानते हो इजहार बरात करने की वजह क्या है? कहा मौला जो हम मानते हैं ना आपको, जो हम कहते हैं आपको, ये लोग आपको वो नहीं कहते। कहा अच्छा तो जो तुम कहते हो वो ये लोग नहीं कहते, इस बुनियाद पर इजहार बरात करते हो? कहा मौला। कहा तुम जानते हो वो लोग हमारे चाहने वाले हैं? तकरीबन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो रिवायत में लफ्ज़े हैं उन लफ्जों से बाहर ना जाऊं। इमाम ने कहा कि क्या तुम ये बात जानते हो कि वो हमारे चाहने वाले हैं? कहा हाँ वो आपके चाहने वाले हैं, लेकिन जो आप कहते हैं, जो हम कहते हैं, जो मानते हैं हम आपके बारे में, वो नहीं मानते, लिहाजा हम उनसे इजहार बरात करते हैं। का इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मारिफत उनसे ज्यादा है। इस बुनियाद पर गौर से सुने मेरा मजमा, तुम्हारी मारिफत उनसे ज्यादा है, तुम हमें उनसे ज्यादा पहचानते हो, इस बुनियाद पर तुम उनसे इजहार बरात करते हो, तो फिर हमारी मारिफत तुमसे ज्यादा है। ये इमाम की लफ्ज़े हैं। इमाम ने फरमाया फिर हमारी मारिफत तुमसे ज्यादा है, जो हम जानते हैं वो तुम भी नहीं जानते, तो फिर मुझे तुमसे बरात करना चाहिए। कहने लगा नहीं मौला, नहीं मौला। जैसे ही वो रुका, इमाम ने कहा नहीं अभी रुको, खुदा हमसे भी ज्यादा जानता है। कहां पर मौला? तो कहा इसका मतलब यह है कि तुम्हें लगता है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया होगा, इसलिए कि तुम्हारा मेयार तो यही है ना, जो ज्यादा जानता हो, जिसकी मारिफत ज्यादा हो, वो कम जानने वाले और कम मारिफत रखने वाले को छोड़ दे। कहने लगा मौला फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि खुदा माज़अल्लाह आपको छोड़ दे। नहीं ये तो नहीं है मौला, फिर हमें क्या करना चाहिए? अब सवाल किया, काश पहले ही पूछ लिया होता। इमाम के सामने ज्यादा जोशीले और मौलाई बनने की जरूरत नहीं होती, इमाम से पूछना होता है मौला आप बताए क्या किया जाए। ये कमाल नहीं है कि मौला जिसका तस्करा कर रहा है ना, हमें तो उनसे बरात है। इमाम ने कहा अच्छा अगर तुम्हें ज्यादा जानने की बुनियाद पर बरात है तो हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, हम तुमसे बरात करते हैं, अल्लाह हमसे ज्यादा जानता है, वो हमसे बरी हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है ना। फिर इमाम से पूछा मौला फिर क्या करना चाहिए? कहा सुनो, उनसे मोहब्बत करो। क्या फरमाया? बात शियों की हो रही है, याद रखिएगा। उनसे मोहब्बत करो और उनसे इज़हार बरात न करना। फिर इमाम ने कहा याद रखो ईमान के दर्जात हैं, हर आदमी बराबर तो नहीं हो सकता कि कोई पहले दर्जे पर है, कोई दूसरे दर्जे पर है, कोई तीसरे दर्जे पर। इमाम ने इस रवायत में 7 दर्जों तक जिक्र किया, वरना ईमान के 10 दर्जे भी जिक्र हैं, लेकिन इस रवायत में 7 दर्जों तक जिक्र करने के बाद इमाम ने कहा जो दूसरे दर्जे के ऊपर है वो पहले वाले को कहेगा ये बेकार है, जो तीसरे पर है वो दूसरे वाले को कहे ये बेकार है। ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए? हर ऊपर वाला नीचे वाले को हाथ पकड़कर ऊपर लाने की कोशिश करे। कमाल इसमें है कि हर ऊपर वाला नीचे वाले को हाथ पकड़कर ऊपर लाने की कोशिश करे। जब मारिफत आती है ना तो मोहब्बत बढ़ जाती है, हकारत नहीं आती। अगर शियों को देखने के बाद आपको ये महसूस होने लगे ये छोटा है, ये हकीर है, ये जलील है, इसे क्या आता जाता है, सारी मारिफत तो हमारे सीने में आ गई है, समझ लीजिएगा ईमान यहां से जा रहा है। ये
मारिफत की अलामत नहीं है। मारिफत आ जाएगी तो दूसरों का एहतराम करना आ जाएगा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों का एहतराम करते जाइए। हाँ, इस्लाह करने की कोशिश कीजिए, हकीर करने की कोशिश न कीजिएगा। तौहीन की इजाजत नहीं है, तौहीन नहीं की जाएगी। इस्लाह के नाम पर मजाक न उड़ाइए, इस्लाह के नाम पर तौहीन न कीजिए, इस्लाह के नाम पर बेतुकी बातें न कीजिए, इस्लाह के नाम पर फसाद न फैलाइए। इस्लाह ऐसा कीजिए जिससे कौम के सुधरने का मरहला हो। इतना न बुरा कहना शुरू कर दीजिए कि जो करीब आ रहा हो वो भी दूर भागना शुरू कर दे। बिरादरान अहले सुन्नत से, हिंदुओं से, ईसाइयों से, यहूदियों से, तमाम लोगों से मोहब्बत और करीब लाने की बातें करने वाले अगर शियों को ही दूर भगा दे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। याद रखिएगा, पूरी दुनिया से इत्तेहाद तभी मुमकिन है जब अपने घर में मुत्तहिद रहो, अपने गांव में मुत्तहिद रहो, अपनी कम्युनिटी में मुत्तहिद रहो। दिल इतना बड़ा तो करो कि कम से कम शियों के लिए गुंजाइश हो। जिस दिल में शियों के लिए गुंजाइश ना हो फिर रियाकारी करने से कोई फायदा नहीं। सलवात पढ़ लें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगारा हमारी कौम में इत्तेहाद पैदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगारा हमारे दरमियान से इख्तिलाफात को ख़त्म कर दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता है, किसी भी लम्हा, किसी भी लहज़ा वलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम हमसे सल्ब न फरमाना। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का किसी भी लम्हा, किसी भी लहज़ा दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए गत्ती बराबर हमारे दिल में गुंजाइश न पैदा होने पाए। परवरदिगारा इंशाअल्लाह इस जश्न को हम अपने वक्त के इमाम के साथ मना सके वो असबाब मुहैया फरमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े ही हसीन और ख़ूबसूरत तरीक़े से आली जनाब मौलाना कौसर अब्बास साहब क़िबला इमाम जुमा मंझनपुर कौशाम्बी खिताब फरमा रहे थे। इन्होंने बीच में एक दर्द बयान किया कि और तो चलिए जिन्हें मरजाए कराम ने मुक़द्दस कहा कि ये इनके मुक़द्दस हैं, मुक़द्दसात में से हैं, इनकी तौहीन न कीजिए, लेकिन अब अबू सुफियान, माविया और तो और ताज़ा खबर सुनिए, हिंदा को भी मुक़द्दसात में शामिल करने की प्लानिंग चल रही है। अब बताइए, जिसके शौहर हों 10 वो भी मुक़द्दस। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस जश्न के मेहमान खुसूसी आली जनाब ज़मीर हैदर साहब क़िबला करारी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और तकरीर से सामईन को नवाजें। आप हज़ार नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़ाल अस्सादिक़ अलैहि अस्सलातु वस्सलाम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शियातुना खुलिक़ु मिन फ़ादिल तीनतिना यहज़नून लिहुज़्निना व यफ़रहूना लिफ़रहिना। सलवात मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, महफिल है, महफिल में एक तकरीर ही बहुत बड़ी हो जाती है, लगातार 2 तकरीर, और फिर इतनी पुरजोश तकरीर के बाद जो पुरजोश, पुरमग़ज़, पुरमाना, पुरपैगाम, पुरदर्स, तो असल जो बहसें थी वो तो हो चुकी, लेकिन एक्सटर्नल गुफ्तगू आपने सुन ली, अब कुछ इंटरनल भी सुन लीजिए। जहाँ पे बात तमाम की है, कौसर साहब भी क़िबला ने बयान किया इंटरनल, लेकिन अब ये महफिल की तकरीर थी, इसलिए पढ़ने के बाद भी अभी शायद पूरा गुबार नहीं निकला। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। 10:22, 10:37 के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक, आप इरशाद फरमाते हैं कि हमारे शिया हमारी फादिल तीनत से बनाए गए हैं और ये हमारी खुशियों में खुश होते हैं, खुशियों के लिए खुश होते हैं, हमारे गम के लिए गम मनाते हैं। अब मसला ये है कि कुछ बातें कड़वी सख्त भी अर्ज करनी है दाखिली, लेकिन इस्लाह है, तनकीद नहीं है। इस्लाह है किसी को नीचा नहीं दिखाना। अहले बैत की खुशी में जब खुशी मनाई जाती है तो तरीका क्या होना चाहिए? तरीका कौन तय करेगा? हम तय करेंगे या अहले बैत? खुशी कैसे मनानी है, गम कैसे मनाना है, ये कौन तय करेगा? हम तय करेंगे या अहले बैत? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समाजियात के एतबार से भी होती हैं कि माकूल समाज जिस अंदाज में गम मनाता है, जिस अंदाज में खुशी मनाता है, उस अंदाज में हर जगह मनाया जाता है। इसीलिए अय्याम आज़ा में मैंने अर्ज किया कि बहुत से ऐसे गम मनाने के तरीके जो ईरान और इराक में हैं, उसको हम एक दलील बना के इंडिया में पियादा नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे गम मनाने के तरीके वहाँ पे आप देख लेंगे। वहाँ पे जो पूरी नक्काशी की जाती है, मंजरकशी की जाती है, वहाँ ऐसे बयान किया जाता है, वहाँ लोगों को बनाया जाता है। वहाँ आपने ताबूत में देखा होगा, करबला में भी देखा होगा, एक शेर बिठा दिया गया। तो हम लोग दलील देते हैं कि चूंकि वहाँ हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, इराक और ईरान के समाज के एतबार से भी बहुत सी चीजें होती हैं जो वहां गम मनाने का तरीका है। जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ भी वही गम मनाने का तरीका हो। और अगर वहां के गम को लाके यहाँ पे उतार रहे हैं तो जो वहां खुशी मनाने का तरीका है वो भी लाके उतारिए। अपनी दुल्हन को सफेद लिबास पहनाना पड़ेगा, पहनाइए। ईरान इराक में पहनाते हैं ना, हमारे लिए अगर आइडियल वहां के समाजियात हो गए। देखिए, शरीयत हर जगह एक होती है, लेकिन समाज में गम मनाने के तरीके अलग होते हैं, खुशी मनाने के तरीके अलग होते हैं। जो जहां का तरीका होता है वहां वैसे मनाया जाता है। अगर गम मनाने के तरीके ईरान इराक से आप लेके आएंगे तो शादी में भी अपनी दुल्हन को वैसे ही सफेद कपड़ा पहना दें। शादी छोड़ें, दुल्हन को छोड़ें, कोई और सफेद पहन के चला जाए दुल्हन के पास, कोई और चला जाए सफेद पहन कर, नहीं जाएंगे। तो तरीके वो होंगे जो हमारे यहाँ होंगे। तरीका कौन? जो माकूल तरीका है, जो शुरफा का तरीका है। तो खुशी मनाने का तरीका भी शुरफा का होना चाहिए। हमारे यहाँ न जाने कितनी वीडियोस ऐसी आई हैं, क्लिप ऐसी आई हैं, गुज़श्ता नहीं आज की कल की क्लिप हैं, जो मैं बिल्कुल सामने से कह रहा हूँ, शरीफों की खुशी मनाने के तरीके नहीं थे। शरीफों की खुशी मनाने के तरीके नहीं थे। जहां रुपट्टे ओढ़ के ठुमके लगाए जाएं, यह शरीफों का तरीका नहीं है। मैंने पिछले साल की इसी महफिल में कहा था, हर वो तरीका इख्तियार करो कि सामने इमाम रहे तो कर सको।
हम समझ लें कि सामने इमाम मौजूद हैं, हम वो कर सकते हैं। जितने लोग ठुमके लगा रहे थे इमाम ज़मान सामने आ जाएं वैसे ही लगाएंगे। अगर लगा सकते तो ठीक, और अगर नहीं लगा सकते इसका मतलब फाउल है, इसका मतलब रॉन्ग है, इसका मतलब गलत है। हमारी खुशी का तरीका वो होगा जो अइम्मा मासूमीन जिससे राजी हो, हमारे गम का तरीका वो होगा जिससे अइम्मा मासूमीन राजी हो। हम खुद से नहीं कर सकते। डीजे पे चल रहा है, डांस चल रहा है, गाने चल रहे हैं, हमारी जो है वो हो गई। और जैसा मौलाना ने अभी अर्ज किया कि हम ये समझते हैं शरीयत उठा ली गई, अहकाम उठा लिए गए, ना शरीयत उठाई गई ना अहकाम उठाया गया, बल्कि ईद के दिन तो और ज्यादा नाफिज होता है। इसलिए कि मौला ने पहले ही कह दिया है जिस दिन गुनाह ना हो वही दिन ईद का दिन होता है। जिस दिन गुनाह ना हो वह दिन ईद का दिन। और अगर वह ईद मंसूब है, क्या पीछे लिखा हुआ है? जश्न ईद ज़हरा। देखिए मर्दों में तो फिर भी इंसान हो सकता है कि थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा ले जाए, लेकिन अगर खवातीन रहती हैं तो इंसान और एहतराम करता है। खानदान इस्मत व तहारत के मरकज का नाम है फातिमा ज़हरा, और फातिमा ज़हरा की खुशी में अगर खुशी हम शैतानों जैसी मनाएं तो इसे खुशी नहीं कहते हैं। फिर लोग, मैंने कई जगह पे बहुत सी बातें थी लेकिन मैंने जो टाइम दिया उसी पर अर्ज करूंगा। जब लोग नीचे कमेंट करते ना वीडियो में तो सीधा कहते हैं पता नहीं उलमा कहाँ खामोश हैं। आपने उलमा को किस काम का छोड़ा कि उलमा बोले? भाई पब्लिक ने उलमा को किस काम का छोड़ा? उलमा आगे आते हैं तो सीधे टैग लग जाता है आज़ादारी के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, मौला के दुश्मन और इन पे लानत। आप तो सीधा टैग लगा रहे हैं ना। आज पब्लिक समझ नहीं रही है जाकिरीन खुतबा के लिए किसी बज़्म में जाके तकरीर करना मुश्किल हो रहा है, मजलिस पढ़ना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कि इनका नजरिया कुछ और है, इनका नजरिया कुछ और है, इनका इरादा कुछ और है, इनका अकीदा कुछ और है। ये चाहते हैं मेरे जैसे पढ़े, वो चाहते हैं मेरे जैसे पढ़े, ये चाहते हैं मेरे जैसे पढ़े। सिर्फ जाकिरीन नहीं, जाकिरीन के लिए भी, शुआरा के लिए भी, ये जो मौजूद है सब के लिए मुश्किल है। इसलिए कि पब्लिक सोच रही मेरे जैसे पढ़े। जब पब्लिक उलमा के पीछे मजबूती से खड़ी होती है तभी उलमा मैदान में आते हैं। लेकिन अगर उलमा को अकेला छोड़ दिया जाता है तो अली भी खाना नशीन हो जाते हैं, फिर मौला भी खाना नशीन हो जाते हैं। आपने मजबूत कब किया है? कौन है जिन्होंने उलमा को मजबूत किया है? किस आलिम को गालियां नहीं दी जा रही, किस मौलवी को बुरा नहीं कहा जा रहा है? कौन है जो बुरा नहीं कह रहा? हर कमेंट में उलमा का है। भाई ठीक है उलमा खामोश है, आप क्या हैं? आप क्या हैं? जब बात किसी ऐसे मसले की आती है तो पहले यही कहा जाता है अरे मौलाना कौसर साहब से क्या पूछ रहे हो? हम हैं ना, हम बताएंगे क्या है। मौलाना ज़हीर साहब से क्या पूछ रहे हैं? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। मैंने इस जुमले को पहले भी अर्ज किया, फिर अर्ज कर दूं। जब बात इन सारी चीजों की आती कहते अरे मौलाना से क्या पूछो, वो क्या जाने, हम बताएंगे। लेकिन जब बात ये आती कि इमाम ज़मान आएंगे तो 70,000 आलिमों के गर्दन मारेंगे तो कहते नहीं वो हम नहीं, वो कौसरी साहब है, वो ज़मीर साहब है। यानी जहां बुकराती करना हो तो खुद आलिम बन जाते हैं, जहां गर्दन कटना हो वहां हम लोग आ जाते हैं। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला की तलवार आएगी। तुम ही तो कह रहे थे कौसर साहब ज़मीर साहब के पास क्या जा रहे हो, हमसे पूछो। ज़हीर साहब के पास क्या जा रहे हो, हमसे पूछो। क्या आप ज़ीशान साहब के पास जा रहे हैं, हमसे पूछे। क्या जा रहे हैं आप शान हसन साहब के पास, हमसे पूछे। तो जब तुमसे ही सब पूछ रहे तो तलवार भी कहाँ चलेगी? ये तलवार किधर जाएगी? अपने मसले में बचा के निकल जाते हैं। भाई ये कुछ दर्द दिल है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, बाकी तमाम तकरीर आप सुन चुके हैं। इमाम कह रहे हमारे शिया हमारी फाजिल तीनत से बनाएंगे। तुम अजीम हो, अपनी अजमत को लेकिन पहचानो तो कि तुम क्या हो, तुम क्या हो। ये तय बात है, ये तय बात है कि अगर किसी को जन्नत में जाना है तो हम ही हैं। अगर कोई कौम जाएगी तो हम ही हैं, इसके अलावा कोई कौम नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसलिए कि अहले बैत के पैगाम को आधा अधूरा सही लेकिन फिर भी जो जमीन पे उतार रही है वो यही कौम है। जितना भी जमीन पे उतार यही कौम है, इसके अलावा कोई और कौम नहीं। आपकी फेहरिस्त में आने की ख्वाहिश तो जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने की थी। भाई आपसे मुराद आप, मैं नहीं। मैं तो समझता हूं कि मैं मुहिब से आगे नहीं बढ़ पाया। आप जो वाक़ई शिया, रिवायत है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की,
मौला इरशाद फरमाते हैं जनाब इब्राहिम के वजूद को, नूर को जब खल किया गया, जनाब इब्राहिम ने अपने वजूद को देखा। जनाब इब्राहिम ने देखा मुझसे हसीन कोई नहीं, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं। ये एहसास होता है मुझसे खूबसूरत कोई नहीं। जैसे ही एहसास हुआ मुझसे खूबसूरत कोई नहीं, अल्लाह ने कहा जबराइल जाओ इन्हें बताओ तुम नहीं हो सबसे खूबसूरत। गए जनाब इब्राहिम के आंखों के सामने से वो पर्दे हटाए। अब जनाब इब्राहिम ने अनवार को देखना शुरू किया। अरे जिब्राइल हम तो समझ रहे थे हम ही स्पेशल हैं, एक ये नूर कौन है जो इतना चमकदार है, जो इतना चमक रहा है। जिब्राइल ने कहा ये वो हैं जिनके सदक़े में तुम्हें बनाया गया, इन्हें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा। कहा जिब्राइल वो तो ठीक, लेकिन उनके साथ एक और नूर है जिसकी चमक सेम है, वैसा ही नूर जैसे इनके अंदर है। ये कौन? कहा ये इनके वसी और जानशीन, एक नूर का दूसरा टुकड़ा इनके वसी हैं अली इब्न अबी तालिब। उनके साथ तीन नूर और नजर आ रहे हैं। ये कौन? का एक नूर फातिमा है, एक नूर हसन है, एक नूर हुसैन है। फिर 9 नूर और हैं जो इहाता किए हुए हैं। छठे इमाम की रवायत जाबिर इब्न यजीद जौफी से रवायत है, वो कहते हैं 9 नूर जो इहाता किए हुए हैं। इब्राहिम ने कहा ये कौन जिनकी चमक इन जैसी है? कहा ये हुसैन की नस्ल से हैं, अली इब्न हुसैन, मोहम्मद इब्न अली, जाफर इब्न मोहम्मद, मूसा इब्न जाफर, अली इब्न मूसा, मोहम्मद इब्न अली, अली इब्न मोहम्मद, हसन इब्न अली और हजरत इमाम हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये अनवार है जिनके सदक़े में तुम्हें बनाया गया। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। जनाब इब्राहिम ने कहा जिब्राइल ये सब तो एक जैसे हैं, लेकिन इसके बाद जो दायरा है बड़ा वसी है, लातादाद अनवार, लातादाद सितारे जिनको मैं गिन नहीं सकता, जिनको मैं शुमार नहीं कर सकता। ये कौन से अनवार हैं? का ये अली के शिया हैं। ये कौन है? ये अली के शिया हैं। मारिफत इब्राहिम देखें, ये नहीं कहा मुझे नूर मोहम्मद जैसा बना दे, नूर अली जैसा बना दे, नूर हसन जैसा बना दे, नूर हुसैन और नूर ज़हरा जैसा बना दे, या नूर अइम्मा जैसा बना दे। लेकिन जैसे इन सितारों को देखा जनाब इब्राहिम ने हाथों को उठाया, है परवरदिगार ये सितारे भी इतना चमक रहे हैं, मुझे भी इसी फहरिस्त में करार दे दे। अल्लाह ने कहा इन्न मिन शिय्अतिही इब्राहिम, हमने अली के शियों में इब्राहिम को भी करार दे दिया है। अजमत को समझे, ये शिया कितना अजीम है। आखिरी पैगाम, और इस पैगाम को देते हुए अपनी बात को तमाम करना चाहूँगा। जब अजमत इतनी है तो हमें खुद अपनी अजमत ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर से ये पैगाम ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के लिए। सोशल मीडिया का दौर है, मर्दों की बराबरी करते करते अब सोशल मीडिया पे भी बराबरी हो रही है, पूरी तरीके से बराबरी हो रही है। ख़वातीन के पहले तो मजलिसें थी, फिर ये कहा गया कि हिजाब में मजलिसें चाहे जितना हिजाब में हो, लेकिन जो इशारे, जो रुमूस, जो हरकतें होती हैं, आप कहीं भी जाके सवाल करें उसके नीचे जो कमेंट रहते हैं, आप कमेंट को देखिए। अच्छा मजलिसें तो चले कहते हैं मजलिसें पढ़ रहे हैं, वो तो फिर भी आप कह दीजिए मजलिस हो रही, लेकिन इसके बाद व्लॉग के नाम पर मर्दों की कैसी बराबरी हो रही है, कैसे फॉलोअर बढ़ जाएं। देखिए फॉलोअर और लाइक भी एक नशा है, मैं भी उस वादी में मैं जानता हूं। फॉलोअर और लाइक एक नशा है, और ये नशा जब सर पे चढ़ के बोलता है तो अच्छे अच्छे आदमी बहकने लगते हैं। हम क्या बताएं, क्या क्या अर्थ किया जाए। लाइक के चक्कर में जब कोई पढ़ता है ना, और फॉलोइंग के चक्कर में, तो अच्छे अच्छे लोग बहकने लगते हैं। इसलिए कौम की ख़वातीन से गुजारिश है, हर फील्ड में मर्दों की बराबरी नहीं करें। हमारे यहाँ ख़वातीन मैदान में नहीं आई हैं, जिनके यहाँ मैदान में आई हैं उन्हें आने दीजिए।
जिनके यहाँ आई हैं उनको आने दीजिए। और मैंने पहले भी अर्ज किया, 2 मिनट बचे हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया है, औरतों का मैदान में आना बुरा नहीं है, आप ठीक है बनाइए, लेकिन एक बात समझ के, सबकी लिमिट होती है, सबकी हद होती है, हर हद से आगे नहीं बढ़ा जाता है। इस्लाम ने कहा औरत किसी भी मैदान में आ सकती है, लेकिन अपने वकार को बचा के, अपनी तमकनत को बचा के, अपनी शराफत को बचा के, हर वो मैदान जहां में आने से इस औरत की अजमत में इजाफा हो, दीन की अजमत में इजाफा हो, दीन के वकार में इजाफा हो, उस मैदान में आ सकती हो। लेकिन जहां दीन की बेइज्जती हो, शरीयत की बेइज्जती हो, इस्लाम की बेइज्जती हो, उस मैदान में नहीं आ सकती। शायद यही वजह है कि दोनों तरह का हमने आना देखा है। एक आई तो हजारों मुसलमानों का खून करवा के चली गई, एक ज़ैनब आई तो दीन भी बचाया, शरीयत भी बचाई। मैदान में आओ, लेकिन जब वापस पलट के जाओ तो फख्र से कह तो सको, नाना ज़ैनब जख्मी आई है लेकिन दीन बचा के आई है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीर हैदर साहब क़िबला मेहमान खुसूसी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। इससे पहले कि मैं किसी शायर को आवाज़ दूं, तमाम उलमाए कराम से बसद अदब गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ़ ले आए। तमाम उलमाए कराम आप लोग तशरीफ ले आए। ठीक, आइए ऊपर तशरीफ ले आए, ताकि जो लोग पीछे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। बाहर बहुत से लोग हैं जो पीछे बैठना चाहते हैं, तो आप लोग जब आगे आएंगे तभी तो वो पीछे बैठेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि वो पीछे बैठ सकें। हमारे उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं। अब यहां से मनक़बती दौर का आगाज हो रहा है। नाते पाक के चंद अशार, उसके बाद मनक़बत पेश करेंगे बुलबुले गुलशने नहीं, मैं 4 मिसरों से आवाज देने जा रहा हूं। चूंकि नाते पाक चंद शेर पढ़ेंगे, उसके बाद मनक़बत भी पढ़ेंगे, इसलिए 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं कि जो कल थी मुस्तफा की वही अब भी शान है। जो कल थी मुस्तफा की वही अब भी शान है। कायम जहां में आज भी नामो निशान है। जो कल थी मुस्तफा की वही अब भी शान है। कायम जहां में आज भी नामो निशान है। और मिलती है पूरे वर्ल्ड में औलादे सैयदा, मिलती है पूरे वर्ल्ड में औलादे सैयदा। मेरे नबी का सबसे बड़ा खानदान है। मिलती है पूरे वर्ल्ड में औलादे सैयदा, मेरे नबी का सबसे बड़ा खानदान है। मैं गुजारिश कर रहा हूं बुलबुले गुलशने मनक़बत जनाबे सलीम बल्लामपुरी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ ले आए और चंद शेर नात के पेश करें, उसके बाद मनक़बत के अशार पेश करें। आप हजार नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें।
हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। तमाम शोराए कराम के ऊपर तशरीफ ले आए। 4 मिसरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर करता हूँ। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। जिन्हें हो फिरदौस की तमन्ना, मदीने जाए जरूर जाए, मदीने जाए जरूर जाए, वहीं से जन्नत का रास्ता है। करीब जाए तो दूर जाए, वहीं से जन्नत का रास्ता है। चंदन भाई, ठहर के मेराज के सफर में कहा ये जिब्रील ने नबी से, ठहर के मेराज के सफर में कहा ये जिब्रील ने नबी से, कहा ये जिब्रील ने नबी से, मेरी रसाई की हद यही है, अब इसके आगे हुजूर जान। वाह 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 वाह, मेरी रसाई क्या बात है। की हद अब इससे आगे हुजूर जाएं, क्या बात है, वाह। अब इसके आगे हुजूर जाएं, मेरी रसाई की हद यही है। बता भाई, यहाँ इरशाद, से कुछ शेर इसमें नाते पाक के हैं और कुछ इरशाद, इरशाद। वो याद नहीं आ रहे हैं। ये 4 ही मिसरे थे, बचपने से मैंने इसी 4 मिसरे से आगाज़ किया था, फैज़ाबाद की महफिल से। मुलाज़ा फरमाएं। जितने थे रोशन सितारे, सब तेरे नौकर लगे। वाह। जितने थे रोशन सितारे, सब तेरे नौकर लगे। जितने थे रोशन सितारे, सब तेरे नौकर लगे। चांद सूरज भी तेरी दहलीज के कंबल लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी दहलीज के कंबल लगे। तुझको समझा फिर तेरी सच्चाई का कलमा पढ़ा। वाह 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 वाह। तुझको समझा फिर तेरी सच्चाई का कलमा पढ़ा।
संगरेज़े भी तेरे असहाब से बेहतर लगे। क्या बात है, क्या बात है। संगरेज़े भी तेरे असहाब से वाह, बेहतर लगे। शेर मुलाजा फरमाए हजरात, बैठ गए कुछ रोज सोहबत में सहाबी हो गए। वाह वाह वाह। बैठ गए कुछ रोज सोहबत में सहाबी हो गए। ये वही तो थे मोहम्मद जिनको जादूगर लगे। ये वही तो थे मोहम्मद जिनको जादूगर लगे। शेर मुलाजा करें हजरात, इरशाद। ये वही तो थे मोहम्मद जिनको जादूगर लगे। यहाँ से दो शेर मेरे बहुत पसंदीदा हैं। ये शहरज़ा का मिसरा था कि इस तरह हो मदह जाफर नाते पैगंबर लगे। अगर मिसरा लग गया होगा तो दुआओं से नवाज दिएगा। एक को जब सोचिए तो दूसरा आए नजर। क्या बात है, क्या बात है। एक को जब सोचिए तो दूसरा आए नजर। इस तरह हो मदह जाफर नाते पैगंबर। वाह 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 वाह। हो मदह जाफर नाते पैगंबर लगे। ये अबूजर भाई मेरा पसंदीदा शेर इरशाद। जोड़िए तो हो गए हैं कितने हज जिब्रील के। वाह वाह वाह। जोड़िए तो हो गए हैं कितने हज जिब्रील के। खाने ज़हरा के कितनी मर्तबा चक्कर लगे। वाह 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 वाह। जोड़िए तो हो गए हैं क्या बात है। वाह वाह वाह। हज जिब्रील के। खाने ज़हरा के कितनी मर्तबा चक्कर लगे। यहाँ से एक मतलब चंद अशआर हाजिर करता हूँ। इरशाद। गिलाफ काबा उड़ा दो अगर रिदा की तरह। वाह। गिलाफ काबा उड़ा दो अगर रिदा की तरह। गिलाफ काबा उड़ा दो अगर रिदा की तरह। अरे कहाँ से लाओगे चादर कोई किसा की तरह। वाह 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 वाह। चादर कोई किसा की तरह। तुम मिला रहे हो फजीलत में फातिमा से मगर। मिला रहे हो फजीलत में फातिमा से मगर। तहारतों की सनद लाओ इन्नमा की तरह। वाह वाह वाह। तहारतों
की सनद लाओ इन्नमा की तरह। तो यहाँ से 4 मिसरे खताबंद हैं, मुलाज़ा फरमाएंगे। तहारतों की सनद लाओ इन्नमा की तरह, जो बद्दुआ दी किसी ने लगी दुआ की तरह, जो बद्दुआ दी किसी ने लगी दुआ की तरह, लबों को छू के हुआ जहर भी दवा की तरह। हजार बार मुझे मुश्किलों ने घेरा मगर पढ़ी जो नादे अली उड़ गई हवा की तरह। वाह 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 वाह, पढ़ी क्या बात। नादे अली उड़ गई हवा की तरह, वाह। पढ़ी जो नादे अली उड़ गई हवा की तरह। यहाँ से हजरात इरशाद करने हैं इरशाद। आपकी खिदमत में, मुलाज़ा फरमाएं। मतला बतौर खास अदा कर दें। लफ्ज और मानी में, लफ्ज और मानी में खूब हम समझते हैं, लफ्ज और मानी में खूब हम समझते हैं, कौन है कहानी में खूब हम समझते हैं। वाह 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 वाह। कौन है कहानी में, उसने जब अलम मांगा तो नबी ने फरमाया। वाह। उसने जब अलम मांगा तो नबी ने फरमाया, अरे तुम हो कितने पानी में खूब हम समझते हैं, तुम हो वाह वाह। कितने कितने पानी में खूब हम समझते हैं, तुम हो कितने पानी में। यहाँ से हजरात एक मतला चंद अशार बनज़र इस्लाह इरशाद कलाम पहली बार यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। इरशाद। आज की तारीख के मुनासबत से एक दुरूद पढ़ दें हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद के बारे में। दर फातिमा का तुमने जलाने की भूल की, दर फातिमा का तुमने, दर फातिमा का तुमने जलाने की भूल की, दोज़ख में जान बूझ के जाने की भूल की। वाह 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 वाह। दर फातिमा का तुमने जलाने की भूल की, दोज़ख में जान बूझ के
जाने की भूल की। बेताब भाई ये दो इरशाद। कर रहा हूँ। इरशाद। गलती भी ऐसी होती है क्या बालगाल से, गलती भी ऐसी होती है क्या बालगाल से, बुध को नमाज जुमा पढ़ाने की भूल की। वाह 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 वाह, बुध को नमाज वाह 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 वाह, जुमा बहुत अच्छे। पढ़ाने की भूल की, बुध को नमाज जुमा। शेर मुलाजा फरमाए हजरत, हाजिर करता हूँ। ये है सजा फलाने फलाने की भूल की, ये है सजा नारा हैदरी हैदरी, ये है सजा फलाने। फलाने फलाने में एक कम है, गया क्या आज गया वो। ये है सजा फलाने की भूल की, तलवार जिसकी लेती हो सुल्बों का जायजा। वाह 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 वाह, तलवार जिसकी लेती हो जुल्मों का जायजा, तुमने उसी से शजरा छिपाने की भूल। वाह 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 वाह, तुमने उसी से शजरा छिपाने की भूल की, तुमने उसी से शजरा। मुलाहिजा फरमाए हजरत, झूठों में लिखा था सरे फेहरिस्त जिसका नाम, झूठों में लिखा था सरे फेहरिस्त जिसका नाम, सिद्दीक तुमने उसको बताने की भूल की, सिद्दीक तुमने उसको बताने की भूल की। ये भी दो मिसरे मुलाहाजा फरमाएंगे आप। हाँ। जिस उपज हैं जमाने की भूल की, ये सब जिस उपज हैं जमाने की भूल की, ये सब नजिस उपज हैं। उपज का भी जवाब नहीं है भाई, वाह वाह वाह, उपज का भी जवाब नहीं है। उभरा सा एक निशान बुरा
लग रहा है क्या, उभरा सा एक निशान, बुरा लग रहा है क्या, काबे पर क्यों गिलाफ चढ़ाने की भूल की। वाह 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 वाह, गिलाफ चढ़ाने की भूल की। ये दो मिसरे में मेरे पसंदीदा, देखेंगे शायद किसी लायक हो। मैदान जीत ले गया सरवर का लाडला, मैदान जीत ले गया सरवर का लाडला, बेकार तुमने तीर चलाने की भूल की। वाह 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 वाह, बेकार तुमने तीर वाह 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 वाह, चलाने की भूल की, बेकार तुमने तीर चलाने की भूल की। नाजिल हुआ है खैरुम मिनल्लाह का नाजिल हुआ है खैरुम मिनल्लाह का अली अज़ा से हटाने की भूल की। वाह 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 वाह, नारा हैदरी हैदरी, क्या बात है, क्या बात है। अज़ा से हटाने की भूल की। शेर मुलाहजा फरमाए, अगर हो गया होगा तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। नामे अली अज़ा से, शेर मुलाहजा करें हजरात, के बुग़्ज़े अली में छिल गई अक़लों की रोशनी, बुग़्ज़े अली में छिल गई अक़लों की रोशनी, सूरज से तुमने आँख मिलाने की भूल की। सूरज से तुम, वाह 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 वाह, क्या बात। बुग़्ज़े अली में छिल गई अक़लों की रोशनी, सूरज से तुमने आँख मिलाने की भूल की। सूरज से तुमने आँख। फाजिल भाई देखेंगे मौलाना, दो मिसरे इरशाद इरशाद। चुल्लू में लेके फेंक दिया उसकी प्यास ने, वाह वाह, चुल्लू में लेके फेंक दिया उसकी प्यास ने, दरिया ने इख्तियार दिखाने की भूल की। वाह 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 वाह, इख्तियार दिखाने की भूल की। क्या बात है, क्या बात। दरिया ने इख्तियार। और ये आखिरी शेर और रहमत तमाम मुलाहजा फरमाया, उसको 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 कभी ज़माने में इज्जत नहीं मिली, वाह वाह वाह, उसको कभी ज़माने में इज्जत नहीं मिली,
जिसने लक़ब अली के चुराने की भूल की। वाह 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 वाह, क्या बात है। उसको कभी ज़माने में इज्जत नहीं मिली, जिसने लक़ब अली के चुराने की भूल की, जिसने लक़ब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जनाब सलीम बल्लामपुरी साहब बहुत ही अच्छे तरीके से कलाम पेश कर रहे थे। आपने भी बहुत अच्छी तरीके से सुना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुना। 8 रबीउल अव्वल को नौहा खानों का गला भी बैठ जाता है, मातम करने से भी गला बैठ जाता है। ये तो हर साल होता है, लेकिन इस साल माइक का भी गला बैठा हुआ है। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को। मैं 4 मिसरों से अगले शायर को आवाज़ दे रहा हूँ। आपके पसंदीदा शायर सभी हैं, इसलिए मुझको बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि आपके पसंदीदा शायर को बुला रहा हूँ। पसंदीदा को ही बुलाया है। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि ईदे ज़हरा मनाएंगे हम भी, ईदे ज़हरा मनाएंगे हम भी, अपना ईमा सजाएंगे हम भी, अपना ईमा सजाएंगे हम भी। और मुस्कुराए थे आज चौथे इमाम, इसलिए मुस्कुराएंगे हम भी। मुस्कुराए थे आज चौथे इमाम, इसलिए मुस्कुराएंगे हम भी। इन्हीं 4 मिसरों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे सुहेल बस्तवी साहब से कि तशरीफ लाएं। आप हज़रात नारे सलवात से उनका इस्तकबाल फरमाएं। जनाबे सुहेल बस्तवी साहब। भाई, इससे पहले कि सुहेल बस्तवी साहब कलाम पेश करें, मैं ये इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि शोहराए कराम जनाब नायाब बलियावी साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनके बराबर में बैठना नहीं चाहते, लेकिन उन्हीं का हुक्म है कि आप लोग ऊपर तशरीफ ले आए। आप लोग जामी नजीर साहब से भी गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। नहीं, आ जाइए भाई, कम से कम मजमा भी देखता रहे कि कौन बचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन जश्न, अस्सलाम अलैकुम। जश्न के पुरखुलूस मुबारकबाद। अवलन 4 मिसरे, ये जवाबन आप सबकी जानिब से उनको जो कभी बच्चियों के स्कूलों पे हमला करके शहीद करके खुश हो जाते हैं, कभी ज़ायरीन पे हमला करके खुश होते हैं, कभी मस्जिद में हमको शहीद करके खुश होते हैं। ये कौम ख़त्म हो गई, हमने ख़त्म कर दिया। ये 4 मिसरे आप सबकी जानिब से हैं। सलवात पढ़े, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने कि आखिर हम क्यों ख़त्म नहीं होते। रोज़ कत्ल किए जा रहे हैं, रोज़ मारे जा रहे हैं, क्या वजह है? हम ऐसे वैसे तो है नहीं। आप देखें क्यों कर। एक और सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद वाले मोहम्मद। जलते हैं बस वो मेहंदिए दौरां के नाम से, जलते हैं बस वो मेहंदिए दौरां के नाम से, जिनकी भी परवरिश हुई माले हराम से। चलते हैं बस बस वो मेहंदिए दौरा के नाम से। अब जो बात मैंने कही आप सबके दोनों मिसरे हकीकत कोशिश कर रहा है, वारिस न कोई होता तो मिट जाती पूरी कौम। वारिस वारिस न कोई होता तो मिट जाती पूरी कौम। उम्मत का है वजूद वजूद इमाम। वाह 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 वाह। उम्मत का है उम्मत का है, अरे वारिस न कोई होता तो मिट जाती पूरी। वाह 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 वाह। उम्मत का है वजूद वजूद इमाम से। क्या कर जलते हैं बस वो मेहंदिए दौरा के नाम से। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। जश्न ईद ज़हरा एक बार फिर मुबारकबाद के साथ साथ मैं चंद अशार कोशिश करता हूँ। मिसरा था, है आज भी फिदक की जमींदार फातिमा। क्या मिसरा भाई, वाह वाह। मतलब हाजिर कर रहा हूँ फिर वही बात कि आखिर ये कौम डरती क्यों नहीं है, क्या वजह है। रोज खत्म किए जा रहे हैं, आप सबके मिसरे हैं, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। है आज भी फिदक की जमींदार फातिमा। क्यों कर डरे किसी से आजादार फातिमा। वाह। क्यों कर डरे किसी से आजादार फातिमा। जो मानते हो आपको सरकार फातिमा। क्यों कर डरे किसी से आजादार फातिमा। 2 महीना 8 दिन आजादार बैठे हैं। शेर आपका है आजादार फातिमा। उसके बाद चंद अशार सादे सादे देख लेंगे। फर्शे अज़ा से करती है वो प्यार फातिमा। फर्शे अज़ा से करती है वो प्यार फातिमा। आई है मेरे घर में कई बार फातिमा। क्यों कर डरे किसी से आजादार फातिमा। महशर में
फंस गए हैं फिदक तेरे गासिबीन। अरे महशर में फंस फंस गए हैं फिदक तेरे गासिबीन। इस पार है खदीजा तो उस पार फातिमा। इस पार है खदीजा तो उस पार फातिमा। अब एक शेर सुन ले जो मुझे बेहद अजीज है। इस पार है खदीजा तो उस पार बचपन से सुनते चले आ रहे हैं जब अज़ा का बिला का फर्ज बिछता है कौन कौन सी शख्सियत आगे बैठी। मरियम के साथ बैठी है महफिल में हाजिरा। अरे मरियम दूसरा मिसरा मरियम के साथ बैठी है महफिल में हाजिरा। इस शौक में के देख ले एक बार अरे मरियम के साथ मरियम के साथ बैठी है महफिल में हाजिरा। मरियम के साथ बैठी है महफिल में हाजिरा। इस शौक में के देख ले एक बार फातिमा। क्यों कर डरे किसी से अज़ादार फातिमा। अब्बास तुझ पर और भी जचता है ये लक़ब। अब्बास तुझ पर और भी जचता है ये लक़ब। कह कर गई है तुझको अलमदार फातिमा। क्यों कर अब्बास तुझ पर भी जचता है ये लक़ब। कह कर गई है तुझको अलमदार फातिमा। रे बच्चे को इसलिए भी तबरुक खिलाते हैं। देखिए दुनिया डॉक्टर्स मना करते हैं एक दिन का भी बच्चा होगा जरा सा तबरुक करते जरूर है उसके बगल में हम बच्चे को इसलिए भी तबरुक खिलाते हैं। बच्चे को इसलिए भी तबरुक खिलाते हैं। बन जाए आपका वो नमक खार फातिमा। वाह 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 वाह। क्यों कर डरे किसी से अज़ादार फातिमा। अरे बच्चे को इसलिए भी तबरुक खिलाते हैं। बन जाए आपका वो नमक खार फातिमा। क्यों कर डरे किसी से अज़ादार फातिमा।
फातिमा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरे मरियम वाह 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 वाह। मरियम के साथ बैठी है महफिल में हाजिरा, इस शौक में के देख ले एक बार वाह वाह फातिमा। क्यों सभी शेर कर अच्छे डरे हैं, वाह। किसी से अज़ादार फातिमा। देखें यहाँ से क्योंकि तवील फहरिस्त है, एक कलाम के चंद अशार समाप्त कर लें। मिसरा था कि मिसरा माह रमजान का था कि पयामे सुलह से दस्ते सितमगर तोड़ देते हैं। पयामे सुलह बड़ी से बहस होती है मौला हसन ने सुलह की दस्ते जंग नहीं की, सितमगर क्यों तोड़ नहीं देते की। हैं। बहरहाल पयामे सुलह से दस्ते सितमगर तो ये रदीफ तोड़ देते हैं। इरशाद है सारे जुल्म इस्तिबदाद हंस कर तोड़ देते हैं सारे जुल्म इस्तिबदाद है सारे जुल्म इस्तिबदाद हंस कर तोड़ देते हैं अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। एक शेर तक लाना है। अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। शेर देख ले, तोड़ देते हैं। इरशाद कभी तहरीर चलती है, कभी शमशीर चलती है। कभी तहरीर चलती है, कभी शमशीर चलती है। नशा कुफार का सिबते पैगंबर तोड़ देते हैं। अब यहां से वाह 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 वाह। नशा कुफार का सिबते पैगंबर तोड़ देते हैं। अब शेर देख ले। नजर नजर अकबर की तीरों पर पड़ी तो मुस्कुरा उठे। क्या बात है, देखें क्या शेर, बात है। भाई जवान मेरे। नजर अकबर की तीरों पर पड़ी तो मुस्कुरा उठे। कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। नजर अकबर की तीरों पर पड़ी तो मुस्कुरा उठे। कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। कहा ये वो। अब देखें जवान मौला अब्बास के गुलाम अलम उठाने बैठे हैं। शेर देख ले, तोड़ देते हैं। वफा की पूछता है जब मुकम्मल दास्तां कोई। क्या बात है, क्या बात है। वफा की पूछता है जब मुकम्मल दास्तां कोई। कलम अब्बास का हम नाम लिख कर तोड़
देते हैं कलम। वाह 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 वाह। ना अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या वफा की पूछता। अब जो शेर मुझे सुनाना था, नजर नजर अकबर की तीरों पर पड़ी तो मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। वफा की पूछता है जब मुकम्मल दास्ता कोई, कलम अब्बास का हम नाम लिख कर तोड़ देते हैं। तो जो सूखी सूखी जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं, रख के घुटनों पर खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते, वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं, रख के घुटनों पर खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते। अब शेर जो माहौल इस वक्त वही बात, कमजोर क्यों नहीं है, क्या बात, तोड़ देते हैं। देखिए शेर महसूस करें सबके साथ साथ, वालिद मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ कर दिएगा। उठा सकते हैं हम तलवार बोली कौम की माए, अरे उठा सकते हैं हम तलवार बोली कौम की माए, यूं ही चूड़ी नहीं फर्शे अज़ा पर तोड़ देते हैं। वाह 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 तोड़ देते हैं, यूं ही चूड़ी नहीं। आखिरी शेर है, यूं ही जो उठा सकते हैं हम, उठा सकते हैं हम तल। देखें सोशल मीडिया के थ्रू जहां मौके पे हमला हुआ था, एक जवान शहीद हुआ, अगले दिन उसी की मां ज़ायरीन की खिदमत कर रही थी। देखें उठा सकते हैं हम तलवार बोली कौम की माए, यूं ही चूड़ी नहीं फर्शे अज़ा पर तोड़ देते हैं। कैसे कैसे साथी मौला लेके गए थे, वैसे ना बाबा को मिले ना भैया को मिले। अरे गुरूरे फौज को दरिया की तह में दफन कर देंगे, ये प्यासे हो के भी गर्दन से खंजर तोड़ देते हैं, ये प्यासे हो के भी गर्दन। अब देखें बड़ी बहस होती है, मौला हसन मौला हुसैन पयामे सुलह से दस्ते सितमगर तोड़ देते हैं। पयामे सुलह से दस्ते सितमगर, हसन ये कह के ही तलवार छोड़ाए हैं, हुजरे में पयामे सुलह से दस्ते सितमगर तोड़ देते हैं। सोहेल उन हासिदों से मैं कोई रिश्ता नहीं रखता, सियासत से किसी मोमिन का जो घर तोड़ देते हैं। नारे हैदरी। जनाबे सुहेल बस्तवी साहब, देखिए मैं निज़ामत बस उतनी ही कर रहा हूँ
निजामत का मतलब ये नहीं है कि मजमे को नाजिम ही थका दे, उसके बाद शायर बेचारा आके रेडियो स्टेशन हो जाए। मैं 4 मिसरों के साथ अगले शायर को आवाज देने जा रहा हूं। आप यकीन नहीं करेंगे कि कब किसको मैं बुला दूंगा। समाअत फरमाए। तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस संत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस संत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? और 4 मिसरों के साथ मैं आवाज देने जा रहा हूं, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। 4 मिसरे बहुत पुराने हैं तो एक बुजुर्ग ने ही फरमाइश की, तो मैंने याद किया। बहुत शुक्रिया फिल्म वालों तुम्हारा, बहुत शुक्रिया फिल्म वालों तुम्हारा। बचाया जो तुमने हमारा बजट। बहुत शुक्रिया फिल्म वालों तुम्हारा, बचाया जो तुमने हमारा बजट। तबर्रा का शोर उठने लगता अगर हम बनाते 3 इडियट। बहुत शुक्रिया फिल्म वालों तुम्हारा, बचाया जो तुमने हमारा बजट। तबर्रा का शोर उठने लगता अगर हम बनाते 3 इडियट। मैं गुजारिश कर रहा हूं बाबाए मनकबत आली जनाब चंदन फैजाबादी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। हाजी चंदन फैजाबादी साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात नारे सलवात से उनका इस्तकबाल फरमाएं। भाई ये ऑन करवा दीजिए। तमामी हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक, सरकार इजाज़त है? सर जमीर भाई के हक तुम्हारा, के हक तुम्हारा जता के कहो के हक तुम्हारा है ये जता के कहो। अरे याली हाथ को उठा क्या हक तुम्हारा है ये जता के कहो। अरे शेख कहते हो जो अज़ा के खिलाफ, दम अगर है करीब आके कहो। वाह 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 वाह, दम अगर है वाह वाह वाह, करीब आके कहो।
अबू जर भाई, जहां तक मुझे याद है मैं सब नए शेर पढ़ूंगा। एक नारा सलवात का सहारा दें। क्या बात है, वाह वाह। एक मतलब सरकार के 14 जितने हजरात बाहर बैठे हैं, अरे 14 सदियों से यही एक सुर्खी अखबार है। क्या बात भाई है, जमीर भाई, क्या अरे बात है। 14 सदियों वाह। से यही एक सुर्खी अखबार है। अरे सामने शियों के है असलहा बेकार है। सामने वाह वाह अरे वाह वाह। सामने शियों के हर एक असलहा बेकार है। डाइस पे बैठे उलमा इकराम, मैं शेर हवाले कर रहा हूं, पसंद आ जाए दुआ दे दीजिएगा। अरे दूर रईस भाई, अरे दूर रहता हूं बुरे आमाल से ये सोच कर। जफर भाई दूसरा मिसरा, अरे दूर अरे दूर अरे दूर अरे दूर रहता हूं बुरे आमाल से ये सोच कर। अरे रोज महशर मेरा मौला मेरा जिम्मेदार है। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। अदब अदब, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। वाह 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 वाह। अरे दूर अरे दूर अरे दूर रहता हूं बुरे आमाल से ये सोच कर। अरे रोज महशर मेरा मौला मेरा जिम्मेदार है। अरे रोज महशर मेरा मौला मेरा जिम्मेदार है। कि रोज महशर मेरा मौला मेरा जिम्मेदार। अरे क्यों ना पेशानी के बोसे ले ले खातूने जना। अरे गोद में बच्चा नहीं ये खुल्द का सरदार। अरे गोद में बच्चा नहीं खुल्द का ये सरदार है। अरे मार कर सरकार, अरे मार कर, अरे मार कर खुद मर गए अमरीका इसराइल भी। वाह 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 वाह। के मार कर खुद मर गए
अमरीका इसराइल भी खामोनाई कि अभी ईरान में सरकार। वाह 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 मेरे कौन सा जी? क्या बात है, क्या बात है। मैं हवाले कर दूं, मैं हवाले कर के मार कर, अरे मार कर खुद मर गए अमरीका इसराइल भी। शेर ऐसा ही होना चाहिए कि अरे एक बार में समझ में आ जाए कि अभी ईरान में सरकार है। अरे वाह 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 की अभी क्या बात। ईरान में सरकार है। शेर हवाले कर देना, समात फरमा ले। एक और नारे सलवात का सहारा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 14 सदियों से यही एक सुर्खी ये अखबार है कि 14 सदियों से यही एक सुर्खी ये अखबार है। सरकार शेर के दूर, अरे दूर रहता हूँ बुरे अमाल से ये सोच कर। वाह अरे वाह दूर, अरे दूर रहता हूँ बुरे अमाल से ये सोच कर। अरे रोज महशर मेरा मौला मेरा जिम्मेदार है। अरे रोज। अब ये शेर वाकई बहुत बड़ा शेर है, बहुत अच्छा शेर था। इसके लिए चूंकि आपने पढ़ा है, मैं तारीख अर्ज कर देना चाहता हूँ। ईरान में तेहरान में एक शायर था हाजिब, उसने मौला की शान में एक दीवान कहा था। तो उसका एक शेर ये था कि हाजिब अगर मामले हश्र बालिस मन जामिनम तो हर बेखाही गुनाह कौन। हाजिब अगर महशर में अली ही सामने रहेंगे तो मैं जमानत लेता हूँ जितना चाहे गुनाह करो निकाल दिए जाओगे। इमाम अली ख्वाब में आए और इमाम ने कहा हाजिब पूरा दीवान बहुत अच्छा है, ये मिसरा बदल दो। हाजिब अगर मामले हश्र बालिस शर्म अज़रुख़ अली कुनो कमतर गुनाह कौन। हाजिब अगर अली ही का सामना रहेगा तो अली के चेहरे से कुछ तो शर्म करो, गुनाह कम करो। उसी का उर्दू में तर्जुमा किया है। माशाल्लाह, मौला की निगाहे करम आपके ऊपर है, जज़ाकल्लाह। के दूर, अरे दूर, अरे दूर, अरे दूर, अरे दूर रहता हूँ बुरे अमाल से ये सोच कर। अरे रोज महशर मेरा मौला मेरा जिम्मेदार है। अरे रोज महशर मेरा मौला मेरा जिम्मे के दूर रहता हूँ बुरे अमाल से ये सोच कर। अरे रोज महशर मेरा मौला मेरा जिम्मेदार है। अरे रोज महशर मेरा मौला मेरा जिम्मेदार है। एक मतलब 2-3 शेर
इरशाद, बहुत शुक्रिया इरशाद। जमीर भाई, नायब से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मतलब 2-3 शेर हवाले, शुक्रिया भाई, हवाले कर रहा हूँ, समात फरमा लें। बहुत मजबूत शेर सुना दिए भाई बाबा। एक नारे सलवात का सहारा दें। के अली का नाम लेकर खुम जब सूरज निकलता है। क्या बात है, क्या बात। अबू जर भाई बिल्कुल नहीं। के अली का नाम लेकर खुम जब सूरज निकलता है, उजाला देख कर भी मुनाफिक हाथ मलता है। वाह वाह। हाथ मलता है। पीछे से भैया ने नारा लगाया था, मैं शेर उन्हीं के नजर कर रहा हूं। के अली के नाम के नारे में ये दोहरा सर देखा। रईस भाई, के अली के नाम के नारे में ये दोहरा सर देखा। किसी की उम्र बढ़ती है, किसी का दम निकलता है। वाह 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 वाह। के अली के नाम, अली के नाम के नारे का ये दोहरा सर देखा। किसी की उम्र बढ़ती है, किसी का दम निकलता है। अरे दम निकलता है। जनाबे शायद तुम रोकोगे कैसे जिक्र हैदर के जनाबे शेख तुम रोकोगे कैसे जिक्र हैदर को। तुम्हारी सोच से आगे अली का नाम चलता है। तुम्हारी सोच। सरकार कौसर चा बड़े भैया, ये शेर जमीर भाई मुझे बहुत पसंद है। भाई साहब, अगर आपको पसंद आ जाए, सरकार आजकल आप जी मैं पढ़ दूंगा भैया बतौर खास। आजकल 12 रबी अव्वल का महीना चल रहा है, तरह तरह की आप बातें सुन रहे हैं। बड़े भैया खुसूसी फाजिल भाई, सलीम भाई, भैया बेताब भाई, किसी भी जंग में उसने कोई मक्खी नहीं मारी। वाह वाह वाह। दूसरा मिसरा समात फरमाए बतौर खास। किसी भी जंग में उसने कोई मक्खी नहीं मारी। जो हाथों में लिए तलवार
गलियों में टहलता है, अरे गलियों में। वाह 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 वाह। कि किसी जंग में उसने कोई मक्खी नहीं मारी, जो हाथों में लिए तलवार गलियों में फैलता है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। जो हाथों में लिए तलवार गलियों में टहलता है। और ये आखिरी शेर के जमीन पर उसने अपने पाँव रखे ही नहीं, लेकिन खुदा का दीन अब बेशीर के कदमों से चलता है, अरे कदमों से चल। मैं हवाले करते रहूं, मैं हवाले करते रहूं कि जमीन पर ने अपने पाँव रखे ही नहीं, लेकिन खुदा का दीन अब बेशीर के कदमों से चलता है, अरे कदमों से चलता है। हजरत, हमारे नायाब शाह ने एक आदेश दिया है, वो बैठे और मैं करबला मैंने पढ़ा था, मैं आपके हवाले करता हूँ। मल्लिसी भाई, इसमें दो जफर भाई भैया इरशाद इरशाद। अली की अदावत में वो जलते, अली की अदावत में वो जलते जलते, अली की अदावत में वो जलते जलते, अली की अदावत में वो जलते जलते, जहन्नम तलक आ गए चलते चलते, जहन्नम तलक आ गए चलते चलते। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सुना जब मुनाफिक ने जश्न अली है, वाह। सुना जब मुनाफिक ने जश्न अली है, कटी रात करवट बदलते बदलते, वाह 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 वाह। कटी रात करवट बदलते बदलते। सरकार शेर सुने। इरशाद इरशाद। जिक्र अली है तबर्रा नहीं है, वाह 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 वाह। ये जिक्र अली है तबर्रा नहीं है, कहाँ जा रहे हो उछलते उछल, हो उछलते उछलते। क्या सारे शेर छोड़ते हुए ये दो शेर कताबन जो मुझे बेहद पसंद है आपके हवाले कर रहा हूं। जमीर भाई ये दोनों शेर देखे। अंधेरों से अब हुर का रिश्ता नहीं है, मल्लिसी भाई वाह। अंधेरों से अब
हुर का रिश्ता नहीं है, सहर हो गई जिंदगी ढलते ढलते। वाह 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 वाह। अली रन में उसने नमाज शहादत, वो जन्नत में पहुंचा टहल। वो जन्नत में पहुंचा। मैं अंधेरों से वाह। अब हुर का रिश्ता नहीं। अच्छा, वाह 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 वाह। सहर हो गई जिंदगी ढलते ढलते। पढ़ी रन में उसने नमाज शहादत, वो जन्नत में पहुंचा टहलते टहलते। ऐ चंदन यही एक हसरत है मेरी, ऐ चंदन यही एक हसरत है सबकी। वाह। चंदन यही एक हसरत है सबके, कहीं याली दम निकलते निकल। वाह 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 वाह। कहीं याली। अब आपकी हसरत हो गई, अब एक कमेटी की हसरत है, चंद शेर चलते चलते। एक मतलब एक शेर मैं पढ़ दूं। जब मैं आया था वो चौखट पे बैठा था आने से पहले। एक मतलब अबूजर भाई और दो शेर। इशाद इशाद। कि शेर, अरे शेर भैया ये आदेश है कि शेर, रईस भाई रुक जाइए। अरे शेर हैदर ने अभी हमला किया कोई नहीं। वाह। ये फरमाइश है इस वजह से कि शेर हैदर ने अभी हमला किया कोई नहीं। फिर भी दरिया के किनारों पर रुका कोई नहीं। फिर वाह 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 वाह। दरिया के किनारों पर रुका कोई नहीं। सरकार मैं शेर इशाद इशाद पूरे शेर नहीं पढ़ूंगा, अगर पहुंच जाए अबूजर साहब तो वहीं से दुआ दे दीजिएगा। अरबई उस्ताद बेता भल्लो रे साहब। अरे अरबई, अरे अरबई, अरे अरबई, अरे अरबई। जो अरबईन में गया है परवरदिगार वो फिर जाए, और जो नहीं गया वो जल जाए। अगर शेर पसंद आ जाए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा सरकार। अरे अरबई, अरे अरबई, अरे अरबई में हौसले देते हैं आबिद के कदम। वाह। जमीर भाई नया चा। अरे अरबई मलसी, अरे अरबई, अरे अरबई फाजिल भाई। अरे अरबई में हौसले देते हैं आबिद के कदम। अरे करबला तक आ गए लेकिन थका कोई। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह।
अरे भाई, अरे भाई में हौसले देते हैं आबिद के कदम। अरे करबला तक आ गए लेकिन थका कोई नहीं। अरे करबला तक आ गए। अरे भाई में शुक्रिया भाई में हौसले देते हैं आबिद के कदम। करबला तक आ गए लेकिन थका को। भैया उसे आंसू निकल रहे मेरे हक में, सिर्फ दुआ कर दीजिए। अरे भाई में हौसले देते हैं आबिद के कदम। करबला तक आ गए लेकिन थका कोई नहीं। अरे करबला तक आ गए। बस दुआ दे दीजिए, लेकिन का कोई नहीं। इसको कहते हैं शहादत, ऐसे होते हैं शहीद के। इसको कहते हैं शहादत, ऐसे होते हैं शहीद। सब तहे खंजर हुए लेकिन मरा कोई नहीं। अरे सब तहे खंजर। हवाले कर देता हूँ, मैं हवाले कर देता हूँ कि इसको कहते हैं शहादत, ऐसे होते हैं शहीद। सब तहे खंजर हुए लेकिन मरा कोई नहीं। और सब तहे खंजर हुए, बहुत अच्छा, लेकिन मरा कोई नहीं। शेर एक सुन ले, आपके हवाले कर दे रहा हूं, समाप्त फरमा लें कि खुद बे ज़ैनब ने बातिल की ज़बानें काट ली। कि खुद बे ज़ैनब ने बातिल की ज़बानें काट ली। सबके सब गूंगे बने हैं, बोलता कोई नहीं। अरे सब के खुद बे ज़ैनब बातिल की ज़बानें काट ली। सब के सब गूंगे बने हैं, बोलता कोई नहीं। और बच्चों, ये तुम्हारे लिए शेर याद रखना कि अरे
जमाने पर हुसैन इब्ने अली का फैज़ है कि ये जमाने पर हुसैन इब्ने अली का फैज़ है। हुर तो मिल जाएंगे लेकिन हुरमुला कोई नहीं, अरे हुर तो मिल जाए। जनाबे चंदन फैजाबादी साहब कलाम पेश कर रहे थे। अब इसके बाद देखिए, हम लोग शायरी करते हैं, जोड़ तोड़ की शायरी कर लेते हैं, लेकिन जो लोग इल्म के साथ शायरी करते हैं वो बहुत अजीम शायरी करते हैं। मैं 4 मिसरों से ऐसे ही एक शायर को आवाज देने की कोशिश कर रहा हूं कि हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। और भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना ज़हीर इलाहाबादी साहब से कि वो आए और कलाम पेश करें। आली जनाब मौलाना ज़हीर इलाहाबादी साहब, आप हज़रात नारे सलवात से उनका इस्तकबाल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमामी हज़रात की बारगाह में जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए एक सलवात से इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में एक मुबारकबाद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुलाहिज़ा फरमाइए, करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। पहले एक शेर उस बारगाह के लिए कि जिस बारगाह में बहरहाल मुसलसल खिदमत का शरफ मिल रहा है कि वहाँ पे दफन है मुश्किल कुशाए कौन मकान, वहाँ पे दफन है मुश्किल कुशाए कौन मकान, मजा न पूछिए शहरे नजफ में रहने का। वहाँ पे दफन है मुश्किल कुशाए कौन मकान, मजा न पूछिए शहरे नजफ में रहने का। और 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाए जहाँ से बात खत्म हुई है वहीं से, चूंकि करबला के तनाजुर के हवाले से, कि जमाना हमसे ये पूछता है, सलीम भाई, जमाना हमसे ये पूछता है उरूज क्या है जवाल क्या है। जमाना हमसे ये पूछता है उरूज क्या है जवाल क्या है, अमा हुसैन इब्ने अली को छोड़ो पता चलेगा वबाल क्या है। जमाना हमसे ये पूछता है उरूज क्या है जवाल क्या है, हुसैन इब्ने अली को छोड़ो पता चलेगा वबाल क्या है। पुकारे नेज़े पे जाके सरवर, सितम के अफराद ये बताएं हमारी गर्दन की खैरियत है, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। वाह 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 वाह। पुकारे नेज़े पे जाके सरवर, सितम के अफराद ये बताएं हमारी गर्दन की खैरियत है, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। और ये भी शेर बहरहाल आज के हवाले से 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमा ले। सीने जुल्म के जिगर का लहू, सीने जुल्म के जिगर का लहू एक लम्हे में सब निचोड़ दिया।
वाह 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 सीने जुल्म के जिगर का लहू एक लम्हे में सब निचोड़ दिया। शुक्रिया तेरा है अबू लूलू, तूने गुस्से में बल्ब फोड़ दिया। शुक्रिया तेरा है अबू लूलू, तूने गुस्से में बल्ब फोड़ दिया, तूने गुस्से में बल्ब फोड़ दिया। और 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाया अबू ज़र भाई, 4 मिसरे और के शहजादी की बद्दुआ है। एक बहुत कुछ लोगों का एक वफ्द है जो ये कह रहा है कि शहजादी के कातिलों को बुरा न कहिए, शायद खुदा बख्श, ये बाबुल हिदाया में मुझसे कहा गया, खुदा रहमान और रहीम है, बुरा न कहिए। मैंने उनसे कहा रहमान और रहीम है, इतना नहीं है कि इनको बख्श देगा, इतना नहीं है कि इनको बख्शेगा। और 4 मिसरे मैंने उनकी खिदमत में पेश कर दिए। मुलाहिजा फरमाया शहजादी बद्दुआ कर रही, खत फाड़ा गया है शहजादी का, बद्दुआ कर रही है, खुदाया आज के हवाले से, खुदाया इसका शिकम चाक कर दे ऐसे ही, खुदाया इसका शिकम चाक कर दे ऐसे ही, ये जिस तरह से मेरे खत को चाक करता है। वाह 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 वाह। खुदाया इसका शिकम चाक कर दे ऐसे ही, ये जिस तरह से मेरे खत को चाक करता है। अदुए ज़हरा की खातिर ये मग़फ़िरत की दुआ, अजीब शख्स है कुत्ते को पाक करता है। अदुए ज़हरा की खातिर ये मग़फ़िरत की दुआ, अजीब शख्स है कुत्ते को पाक करता है, अजीब शख्स है कुत्ते को पाक करता है। और मुलाहिजा फरमाए एक मतलब और चंद अशार, बाकी उसके बाद बुजुर्गान मौजूद हैं कि मलक की हम नशीनी का शरफ पाने निकल आए, मलक की हम नशीनी का शरफ पाने निकल आए, चले अपने मकानों से अज़ा खाने निकल आए। वाह 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 वाह। हम नशीनी का शरफ पाने निकल आए, चले अपने मकानों से अज़ा खाने निकल आए। हुदूदे अर्श से बाहर किसी दहलीज पर देखो, हुदूदे अर्श से बाहर किसी दहलीज पर देखो, फरिश्ते अपनी किस्मत और चमकाने निकल आए। वाह 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 वाह। फरिश्ते अपनी किस्मत और चमकाने निकल आए। जमाना होश के नाखून है उसके बाद बतलाए, वाह वाह। जमाना होश के नाखून है उसके बाद बतलाए, ये क्यों मक्कार सिद्दीका को झुटलाने निकल आए। वाह 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 वाह। ये क्यों मक्कार सिद्दीका को झुटलाने निकल आए। रमक इश्क़ अली की मेरे लहजे में जमाने ने जूही महसूस की तो दिल के पैमाने निकल आए। क्या बात है, क्या बात है। जूही महसूस की तो दिल के पैमाने निकल आए। निशाने मातमे शब्बीर लेकर हश्र जब पहुंचा, वाह। निशाने मातमे शब्बीर लेकर हश्र जब पहुंचा, बहुत सारे वहां पे जाने पहचाने निकल आए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मातमे शब्बीर लेकर, वाह 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 वाह। निशाने मातमे शब्बीर लेकर हश्र जब पहुंचा, निशाने मातमे शब्बीर लेकर हश्र जब पहुंचा, वाह वाह वाह। बहुत सारे वहां पे जाने पहचाने निकल आए। और आज का माहौल आपकी निगाहों के सामने है, कितना सख्त माहौल है। जो भी फासिद होता है वो इस्लाह का परचम लेके आ जाता है और फिर उसके बाद इस्लाह होती है। शेर देखें, वो जिन हाथों में परचम दिख रहे हैं ला इलाहा के, वाह। वो जिन हाथों में परचम दिख रहे हैं ला इलाहा के, जब उनके दिल टटोले हैं तो बुतखाने निकल आए। वाह 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 वाह। वो जिन हाथों में परचम दिख रहे हैं ला इलाहा के, क्या बात है, क्या बात। वो जिन हाथों में परचम दिख रहे हैं ला इलाहा के, जब उनके दिल टटोले हैं तो बुतखाने निकल आए। खबर थी मैं अली की दीद में दिन रात मरता हूं, वाह। खबर थी मैं अली की दीद में दिन रात मरता हूं, मुझे कांधों पे लेकर लोग मिलवाने निकल आए। वाह। खबर थी मैं अली की दीद में दिन रात मरता हूं, मुझे कांधों पे मिलवाने निकल आए। मुझे कांधों पे लेकर लोग वाह 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 निकल आए। और इसी खबर थी हो रही है भाई, वाह वाह मैं वाह। दिन रात मरता हूँ, मुझे
कांधों पे लेकर लोग मिलवाने। क्या बात है, वाह वाह। और ये शेर के गमे शाहे शहीदा से निकलना दिल का मुश्किल था। वाह। गमे शाहे शहीदा से निकलना दिल का मुश्किल था, बिलाखिर ईद ज़हरा पे ही बहलाने निकल आए। वाह वाह वाह। बिलाखिर ईद ज़हरा पे ही बहलाने निकल आए। इसी एक बात पे सर धुन रही है फौज जालिम की, सलामत आग से तस्बीह के दाने निकल आए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन अशार पढ़ रहे थे जनाब ज़हीर इलाहाबादी साहब, बहुत ही अच्छे अशार जिसे मैंने भी सुना और मैंने भी दाद दी, लेकिन हक ये था कि इनको भी बहुत अच्छी तरह से सुना जाना चाहिए था। बहुत अच्छे अच्छे अशार इन्होंने पढ़े। अब चूँकि मुझे एक ऐसे शायर को आवाज़ देना है जो साइंटिफिक शायर है, मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। समाअत फरमाए कि जो मेरे लब पे जिक्रे शहे जुल जलाल है, जो मेरे लब पे जिक्रे शहे जुल जलाल है, चेहरा मुनाफिकीन का गुस्से से लाल है। जो मेरे लब पे जिक्रे शहे जुल जलाल है, चेहरा मुनाफिकीन का गुस्से से लाल है। और उसकी समझ में आएगी क्या फिक़्ह जाफरी, उसकी समझ में आएगी क्या फिक़्ह जाफरी, जिसके फकीह कहते हैं कौवा हलाल है। उसकी समझ में आएगी क्या फिक़्ह जाफरी, उसकी समझ में आएगी क्या फिक़्ह जाफरी, जिसके फकीह कहते हैं कौवा हलाल है। अब एक कथा सोच रहा हूं और पढ़ दूं कि ना आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, ना आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं। और झुलस गए थे जो ज़हरा का घर जलाने में, वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जैसे हैं। झुलस गए थे जो ज़हरा का घर जलाने में, झुलस गए थे जो ज़हरा का घर जलाने में, वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जैसे हैं। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ बड़े भाई जनाबे नायाब बलियावी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और जनाबे मौलाना फाजिल जरेलवी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं जहाँ कहीं भी हो। जनाबे नायाब बलियावी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। आपका अपना शायर आप जिस तरह चाहे सुनिए। नारे सलावत। हाज़रीन, हजरत, मैं आज के इस जश्न की मुबारकबादी पेश करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि चाय नोश फरमाते हुए आप अपनी जगह पर रहिए, मैं अपने हम ख्याल हम उम्र लोगों से कह रहा हूँ। आगे आ जाइए, थोड़ा सा बिखरी हुई आ जाइए, आगे आ जाइए। बुजुर्ग अपनी जगह पे रहें। जो लोग नहीं भाई बाहर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आएं, इसलिए कि जो लोग बाहर गए हैं वो लोग वहां बैठ जाएंगे, आप लोग अंदर आ जाइए। हजरत बराबर घुमाइए। वो शायरी जिसमें वक्त की धड़कन हो, उसके बाद चंद अशार मध्य के पेश करूंगा। जहाने अमनो अमा जगमगाने वाला है,
जहाने अमनो अमान जगमगाने वाला है, चिरागे जुल्म तशद्दुद बुझाने वाला है, चिरागे जुल्म तशद्दुद बुझाने वाला है। वो ट्रक में बैठ के भागा जो बन रहा था खुदा, वो ट्रक में बैठ, आवाज कट रही है, उसी पर पढ़िए, उसी पर वो लग रहा है कि एक दरूद और इरशाद फरमा दीजिए। इस पेश करता हूँ। नायब भाई इस माइक पे तो कता ही मुनक़ता हो रहा था। हज़रत मुला हुमायूं, एक इबरतनाक मंजर आपने देखा, वो जो अब्राहम लिंकन का मालिक, जेराल्ड फोर्ड का मालिक, जिसके बारे में मरजे वक्त ने कहा था कि ठीक है तेरा जहाज बहुत ताकतवर है, तो उसको डुबाने का हम हौसला भी रखते हैं। क्या बात है। वो ट्रक में बैठ के भागा जो बन रहा था खुदा। वाह 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 वाह। ट्रक में एक इबरतनाक मंजर देखा आपने। वो ट्रक में बैठ के भागा जो बन रहा था खुदा, जहाजों का मालिक। वो ट्रक में बैठ के भागा जो बन रहा था खुदा, अब उसके जुल्म को हुर्मुज़ डुबाने वाला है। वाह 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 वाह। उसके जुल्म को हुर्मुज़ डुबाने वाला है। जो ट्रक में बैठ के भागा, इबरतनाक मंजर, जो बन रहा था खुदा, अब उसके जुल्म को हुर्मुज़ डुबाने वाला है। नक्शे से मिटाने की बात करने वाला, न बच सके कोई दुनिया में आशिक़ हैदर, वो इनकलाब यहाँ जुल्म लाने वाला है। अपने वजूद पे नाज करें। लकीर खाने काबा की मिट नहीं पाई, लकीर खाने काबा की मिट नहीं पाई, सुना है हमको जमाना मिटाने वाला। वाह 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 वाह। सुना है हमको जमाना मिटाने वाला। हम क्यों नहीं मिट पाएंगे? मुलादा हुमायूं पेश करता हूँ। मोमिनों का ज़मीर जिंदा है, मोमिनों का ज़मीर जिंदा है, मोमिनों का ज़मीर जिंदा है, क्योंकि अभी गदीर जिंदा है। मोमिनों का ज़मीर जिंदा है। हमारे भाई ने साइंटिफिक रूप से आवाज़ दी, तो मैं ये साबित करना चाहता हूँ ये हमें कुव्वत आई कहाँ से। क्या बात। मोमिनों का आज पूरी दुनिया में हम और आप, अभी मौलाना ने ज़बरदस्त तकरीर की, हमारे दोनों उलमा ने, और यही रुख था उनका। पेश करना चाहता हूँ मुला हुमायूं। मोमिनों का
ज़मीर जिंदा है क्योंकि अभी गदीर जिंदा है। मोमिनों का ज़मीर जिंदा है। मुफलिसी हमको छू नहीं सकती, मुफलिसी हमको छू नहीं सकती। गैब में एक अमीर जिंदा। आपका भी सहारा चाहते हैं। मुफलिसी हमको छू नहीं सकती, मुफलिसी भाई गायब में एक कमीज। सरगोशिया न करिए, मेरे शेर सुनिए। एक दुरूद इरशाद फरमा दीजिए। क्या बात, क्या बात। से हमको आज पूरी दुनिया में हम सर बुलंद और अपने वजूद पे नाज कर रहे हैं। क्यों? मुफलिसी हमको छू नहीं सकती। वाह। गैब में एक अमीर जिंदा है। हम हुसैनी हैं, डर नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात। खामनाई को डर नहीं लगता। क्यों? गैब में एक नसीर जिंदा। गैब में एक नसीर जिंदा है। गैब में एक नसीर जिंदा है। मोमिनों का ज़मीर जिंदा है क्योंकि अभी भाई खास तौर से पेश करता हूँ। हम हुसैनी हैं, हम गदीरी हैं। अपने वजूद पे नाज करिए। हम गदीरी हैं इसलिए सच है। हम गदीरी हैं इसलिए सच है। खून में माँ का शीर जिंदा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खून में माँ का शीर जिंदा है। खून में माँ का शीर जिंदा है। हम हुसैनी हैं, डर नहीं सकते। हज़रत दुनिया में कोई भी शय बेकार नहीं है। आज की साइंस भी कह रही है और ये साबित है। मुला मैं ये पेश करता हूँ ख़ास तौर से। तग़य्युराते निज़ाम फितरत की ज़द में कुल कायनात होगी। क्या मिसरा है, वाह वाह। तग़य्युराते निज़ाम फितरत की ज़द में कुल कायनात होगी। हर एक ज़र्रे से है ये साबित कि इसमें रोशन हयात होगी। तग़य्युराते निज़ाम फितरत की ज़द में कुल। आपके यहाँ शायरी सुनी जाती है, शेर पेश कर रहा हूँ। मुला ये कोई भी शय बेकार नहीं है। नहीं है बेवजह चांद तारे। वाह। पलट के सूरज ने ये बताया। नहीं है बेवजह चांद तारे। पलट के सूरज ने ये बताया। नहीं है बेवजह चांद तारे। पलट के सूरज ने ये बताया। अली की मर्जी से दिन ढलेगा। अली जो चाहे तो रात होगी। वाह 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 वाह। फितरत की ज़द में कुल कायनात होगी। अली की मर्जी से दिन ढलेगा।
अली जो चाहे तो रात होगी। तमहीद का आखिरी शेर मुलाज़ हुमायूं, उस शेर के लिए जिसके लिए मैं आपको आमादा कर रहा हूँ। मुलाज़ हुमायूं, नहीं है बेवजह चांद तारे, कोई भी शय फजूल नहीं है, कोई भी खासतौर से पेश फजूल में कोई शय नहीं है, मेरे नबी ने बताया सबको। फजूल में कोई शय नहीं है, मेरे नबी ने बताया सबको। अगर सदाकत पे आँच आए तो संग रेजों से बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तग़य्युरात निज़ाम फितरत की ज़द में कुल कायनात होगी। हर एक ज़र्रे से है ये साबित कि इसमें रोशन हयात होगी। नहीं है बेवजह चांद तारे, पलट के सूरज ने ये बताया। भाई, नहीं है बेवजह चांद तारे, पलट के सूरज ने ये बताया। अली जो चाहे तो दिन ढलेगा, अली जो चाहे तो रात होगी। फजूल में कोई शय नहीं है, मेरे नबी ने बताया सबको। अगर सदाकत पे आँच आए, अगर सदाकत पे आँच आए तो संग रेजों से बात होगी। तग़य्युरात निज़ाम फितरत की ज़द में कुल काए। अब जिस शेर के लिए मैंने तमहीद के अशार सुनाए, जिस शेर के लिए ये तमहीद के अशार हैं, मुलाज़ हुमायूं, फजूल में कोई शय नहीं है, मेरे नबी ने बताया सबको। अगर सदाकत पे आँच आए तो संग रेजों से बात होगी। वो 12 दिन की थी जंग जिसमें, वो 12 दिन की थी जंग जिसने कहा ये ईरान ने मुसलसल। वो 12 दिन की थी जंग जिसमें कहा ये ईरान ने मुसलसल। यहूदियों की उड़ेगी धज्जी, यहूदियों की उड़ेगी धज्जी, अरब में 12 वफात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। निज़ाम फितरत की ज़द में कुल कायनात होगी। वाह वाह वाह। हर एक जर्रे से है ये साबित कि इसमें रोशन हयात होगी। नहीं है बेवजह चांद तारे, पलट के सूरज ने ये बताया। अली की मर्जी से दिन ढलेगा, अली की मर्जी से दिन ढलेगा, अली जो चाहे तो रात होगी। वाह 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 वाह। निज़ाम बहुत अच्छे। की ज़द में कुल कायनात हो। क्या कहना। एक दुरूद इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक नज़्म आपको हमारा कर रहा था, एक नज़्म मैं लेके आया हूँ।
नहीं है बेवजह चांद तारे, पलट के सूरज ने ये बताया अली की मर्जी अली की मर्जी से दिन ढलेगा, अली जो चाहे तो रात होगी। वाह 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 वाह। नहीं है बेवजह चांद तारे, पलट के सूरज ने ये बताया अली की मर्जी से दिन ढलेगा, अली जो चाहे तो रात होगी। फजूल में कोई शय नहीं है, फजूल में कोई शय नहीं है, मेरे नबी ने बताया सबको। अगर सदाकत पे आँच आए, अगर सदाकत पे आँच आए तो संगरेजों से बात होगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। वो 12 दिन की थी जंग जिसमें, वो 12 दिन की थी जंग जिसमें कहा ये ईरान ने मुसलसल यहूदियों की उड़ेगी धज, यहूदियों की उड़ेगी धज, अरब में 12 वफात होगी। तग़य्युरात निज़ाम फितरत की जद में कुल कायनात होगी। तग़य्युरात निज़ाम एक नज़्म लेके आया हूँ। हर साल मैं एक ताज़ा कलाम आपके हुजूर में लेके आता हूँ, तो वो उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक दुरूद इरशाद फरमा दीजिए हज़रत, एक दुरूद इरशाद। हज़रत पेश करना चाहता हूँ, एक सवाल है गाजी के हवाले से पेश करता हूँ। था जरी बेते अपने साथ फिर क्या ले गया। वाह। आखिरी मजमे तक अगर सानी मिसरे में मैं जवाब दे सका तो दुआ चाहता हूँ। बुलाओ भाई, जमीर भाई, एक सवाल। बेते अपने साथ फिर क्या ले गया। गाजी के चाहने वालों, जनाब सकीना के मानने वालों, मुला हुमायूं। था जरी बेते अपने साथ फिर क्या ले गया। उसको दरिया तक सकीना का भरोसा ले गया। क्या सुना आप? उसको दरिया तक सकीना का भरोसा ले गया। था जरी बेते अपने साथ क्या ले गया। था जरी बेते अपने साथ फिर क्या ले गया। उसको दरिया तक सकीना का भरोसा ले गया। उसको दरिया तक सकीना का। मुलाह भाई, तेहु क्या बेहाथ ही लड़ता हुआ 2 लाख से। तेहु क्या बेहाथ ही लड़ता हुआ 2 लाख से। एक प्यासा खुश्क मशकीज़े में दरिया ले गया। आदि के चाहने वालों, वाह 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 वाह। ग्राफ एजेंसी था जरी बेते अपने साथ। एक सवाल,
फिर क्या क्या ले गया उसको दरिया तक सकीना का भरोसा ले गया। देखो क्या बेहाथ ही लड़ता हुआ 2 लाख से। वाह, एक प्यासा, तज़मीन का शेर है ये, एक प्यासा खुश्क मशकीज़े में दरिया ले गया। अहले मंजरपुर और अतराफ के तमामी हजरात, शेर मुला हुमायूं हमेशा कोई भी हमेशा शेर जो है अपने शिकार को दांत में दबाए रहता है। शेर पेश करता हूँ, अगर ये शेर हो गया हो तो दुआ चाहता हूँ। जिस तरह से शेर के दांतों में हो उसका शिकार, गाजी के चाहने वालों, जिस तरह से शेर के दांतों में हो उसका शिकार, घाट से गाजी यूं ही मशके सकीना ले गया। घाट से गाजी यूं ही मशके सकीना ले गया। घाट से गाजी यूं ही मशके सकीना ले गया। ज़ौजे अहमद मुकाबिल में अली के क्यों गई। ज़ौजे अहमद मुकाबिल में अली के क्यों गई। उसको ये सच है जमल में बुग़्ज़े ज़हरा ले गया। खामोशी सुने भाई। वाह 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 वाह। ज़ौजे अहमद मुकाबिल में अली के क्यों गई। ज़ौजे अहमद मुकाबिल में अली के क्यों गई। उसको ये सच है जमल में बुग़्ज़े ज़हरा ले गया। उम्मती समझे के दोनों दफन हैं कुर्बे नबी। अरे क्या सुनना है, अरे बुलाना भाई, भाई बुलाओ भाई। उम्मती समझे के, भाई आप भी बुलाए। उम्मती समझे के, उम्मती समझे के, भाई शेर बुलाओ भाई, भाई शेर बुलाओ, सब मौलाई हैं। उम्मती समझे के दोनों दफन हैं। भाई रूहानी हासरत सम्राट शेर बुलाता भाई। उम्मती समझे के दोनों दफन हैं कुर्बे नबी। उम्मती समझे के दोनों दफन हैं कुर्बे नबी। दोज़खी थे उनको दोज़ख में फरिश्ता ले गया। वाह 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 वाह। समझे के दोनों दफन है कुर्बे नबी। दोज़खी थे उनको दोज़ख का फरिश्ता ले गया। बुग़्ज़े हैदर में वो बंजारों की सूरत दर बदर। बुग़्ज़े हैदर में वो बंजारों की सूरत दर बदर। साथ में बिस्तर के कांधे पर मुसल्ला ले गया। साथ में बिस्तर के कांधे पर मुसल्ला ले गया। चल के जिस पे उम्मती कहलाए दहशत गर्द है। चल के जिस पर उम्मती कहलाए दहशत गर्द है। ऐसे रास्ते पर सकीफा का खलीफा ले गया। चल के जिस पर उम्मती कहलाए दहशत गर्द है। चल के जिस पर उम्मती कहलाए दहशत गर्द है। ऐसे रास्ते पर सकीफा का खलीफा ले गया। ऐसे रास्ते पर
खूबसूरत और जन्नत हो गई। एक दुरूद इरशाद फरमा दीजिए। दोज़खी थे उनको दोज़ख का फरिश्ता ले गया, खूबसूरत और जन्नत खूबसूरत हो गई उस हुस्न से। एक दुरूद इरशाद फरमा दीजिए। वाह सुभान अल्लाह। हज़रत वो शेर लिखा नहीं मैंने, ख़ास तौर से मुलाज़ा मैं पेश करता हूँ। एक शेर और मुलाज़ा फरमाइए। दोज़खी थे उनको दोज़ख का फरिश्ता ले गया। अब दो कतार मुलाज़ा फरमाइए जो आपकी पसंद के हैं, उस जमत तमाम मुलाज़ा फरमाइए। सूगने सुनने की कुव्वत है बहुत हैवां में, सूगने सुनने की कुव्वत है बहुत हैवां में, दौरे हाजिर की तरक्की ने इसे मान लिया। आ गई जंगे जमल में जो अली से लड़ने, आ गई जंगे जमल में जो अली से लड़ने, सच बताऊं उसे कुत्तों ने भी पहचान लिया, सच बताऊं उसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब नायाब बलियावी साहब के बाद आपके पसंदीदा शायर जिसका बहुत देर से आप इंतज़ार कर रहे थे, यकीनन वो इस प्रोग्राम के सबसे कीमती शायर हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ क़ितात पढ़ के ही उन्हें आवाज़ दूंगा, इसलिए मैं कुछ अपने क़ितात हाजिर कर रहा हूँ। समाअत फरमाए। कभी भटकती नहीं है इधर उधर लानत, कभी भटकती नहीं है इधर उधर लानत, कहां पे जाना है रहती है बाखबर लानत, कभी भटकती नहीं है इधर उधर लानत, कहां पे जाना है रहती है बाखबर लानत। और दरे बतूल जलाया था एक दिन जिसने, करूंगा ऐसे मुनाफिक पे ताउमर लाना। करूंगा ऐसे मुनाफिक पे। ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरे दीन पे लाना। ऐ दुश्मन, दूसरा मिसरा मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता। ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरे दीन पे लाना, चाय पे तबर्रा, तेरे नमकीन पे लाना। ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरे दीन पे लाना, चाय पे तबर्रा, तेरे नमकीन पे लानत। और जो लोग ये कहते हैं तबर्रा न करो तुम, वो लोग भी करते हैं शयातीन पे लानत। अरे जो लोग ये कहते हैं तबर्रा न करो तुम, वो लोग भी करते हैं शयातीन पे लानत। अब दो क़ितात हाजिर कर रहा हूं। एक मेरा बहुत ही पसंदीदा, क्योंकि बहुत ही पढ़ा लिखी शख्सियत, बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी शख्सियत, डॉक्टर नाम नहीं ले पा रहा हूं, नहीं, उन्होंने आखिरी अपने शहादत से 2-3 दिन पहले
पूरी दुनिया में रहने वाले मुस्लिम ममालिक से शिकवा किया कि किसी ने भी ईरान का साथ नहीं दिया। उन्हें यह भरोसा था कि ईरान हक के साथ खड़ा है, बातिल के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, लोग हक के साथ खड़े होंगे, ईरान के साथ खड़े होंगे। लेकिन ईरान को जब अकेला छोड़ दिया तो बड़ा धक्का उन्हें पहुंचा। उन्होंने कहा, लिखित में लिख के दिया कि मुझे बहुत अफसोस है। अब मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। अगर मुझे फारसी आती तो मैं कहता कि हुजूर आप बिला वजह अफसोस कर रहे हैं, मुझे तो मालूम ही था कि ये लोग साथ नहीं देंगे। इसकी बहुत पुरानी वजह है। जीते हैं जो अली की विलायत को छोड़कर, जीते हैं जो अली की विलायत को छोड़कर, जीते हैं जो अली की विलायत को छोड़कर, दोज़ख में जा रहे हैं वो जन्नत को छोड़कर। जीते हैं जो अली की विलायत को छोड़कर, दोज़ख में जा रहे हैं वो जन्नत को छोड़कर। और कैसे वो साथ देते, कैसे वो साथ देते अली खामेनाई का, भागे थे जो रसूल की मैयत को छोड़कर। कैसे वो साथ देते अली खामेनाई का, कैसे वो साथ देते अली खामेनाई का, भागे थे जो रसूल की मैयत को छोड़कर। तो नेतन्याहू को अपने सामने बौना समझते हैं, नेतन्याहू को अपने सामने बौना समझते हैं। जिसे तुम ट्रम्प कहते हो उसे गुंडा समझते हैं। नेतन्याहू को अपने सामने बौना समझते हैं, जिसे तुम ट्रम्प कहते हो उसे गुंडा समझते हैं। और कहा ईरान ने हम और सरेंडर गैर मुमकिन है, तेरे जैसे सुपर पावर को हम कुत्ता। कहा ईरान ने हम और सरेंडर गैर मुमकिन है। कहा ईरान ने हम और सरेंडर गैर मुमकिन है, तेरे जैसे सुपर पावर को हम कुत्ता समझते हैं, तेरे जैसे सुपर पावर को हम कुत्ता समझते हैं। अब मैं मौलाना को आवाज देने जा रहा हूं, इसलिए 4 मिसरे इस तरह के पढ़ रहा हूं कि एक पैगाम है अपने बच्चों के लिए। और कुछ लोगों ने मुझे समझाया कि इस तरह के शेर पढ़ा कीजिए, मैं हाजिर कर रहा हूं। इल्म हासिल करना सारे मुसलमानों के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्यों है उसकी वजह मैं हाजिर कर रहा हूं। उसके बाद मौलाना फाजिल जरेलवी साहब माइक पे तशरीफ लाएंगे। एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को। कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को। कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। और मेरा मौला है बाबे शहरे उलूम, जाहिलों का इमाम थोड़ी है। मेरा मौला है बाबे शहरे उलूम, मेरा मौला है बाबे शहरे उलूम, जाहिलों का इमाम थोड़ी है। मैं गुजारिश कर रहा हूं मौलाना फाजिल जरेलवी साहब से, आप 1000 नारे सलवात से उनका इस्तकबाल फरमाएं।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। जश्न ईद मिलादुन्नबी की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त ज़्यादा हो चुका है, आपकी थकान का एहसास मुझे भी है। मैं बस नहीं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, बानी को पता होता है, आपको नहीं पता होता। चलिए मैं आगाज़ करता हूँ। दिल में तो बुग़्ज़े आल रखा है, शौक़ जन्नत का पाल रखा है। दिल में तो बुग़्ज़े आल रखा है, शौक़ जन्नत का पाल रखा है। 14 सदियों से एक नारे ने सबका शजरा खंगाल रखा। दिल में तो बुग़्ज़े आल रखा है, शौक़ जन्नत का पाल रखा है। 14 सदियों से एक नारे ने सबका शजरा खंगाल रखा है। मोजज़ा ये है एक कैदी ने ताजे बैत उछाल रखा है। रोज़ा शह पे जो लगा है अलम, इंतकामन वो लाल रखा है। यूं तो वो मुस्तहिक है जूतों के, फिर भी हमने ख्याल रखा है। यूं तो वो मुस्तहिक है जूतों के, हमने फिर भी ख्याल रखा है। मैं एक कलाम पढ़ता हूँ और जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ और जल्दी जल्दी समाअत कीजिएगा। एक दिन अली से आके ये कहने लगे अकील, ऐ भाई जानशीन नबी वारिस खलील, बेशक है आप मालिक तस्नी मुसलसबील। दिल चाहता है पूछ लूं उस्ताद जिब्राइल, उठकर नमाज शब में किसे मांगते हैं आप, बतलाएं उसका नाम जिसे मांगते हैं आप। महवे दुआ नमाज में रहते हो सारी रात, यादों में किसकी खोए हो सुल्तान मुमकिनात। क्या चाहते हो मुझसे बताओ तो दिल की बात, किसके लिए तड़पते हो मौला ए कायनात। कब तक ये राज राज रखोगे आया करो, जो मुद्दुआ है भाई से अपने बयां करो। कहने लगे अकील से सुल्तान बहरों पर, लो राज खोल देता हूँ भाई मैं आप पर। मैं जिसको मांगता हूँ मुसल्ले पे रात भर, है उसका भाई जान तारुफ ये मुख्तसर। तन्हा वो कायनात वफा का इमाम है, उस हाशमी दिलेर का अब्बास नाम। मौला सलामत। नबी से इश्क है आले नबी से कीना है, नबी से इश्क है आले नबी से कीना है। तुम्हारा जीना भी जीने में कोई जीना है, नबी से इश्क है आले नबी से कीना है। तुम्हारा जीना भी जीने में कोई जीना है। मेरा ख्याल है गुस्ताख फातिमा ज़हरा, ये कायनात का सबसे बड़ा कमीना। कहने लगे अकील से सुल्तान बहरों पर, लो राज खोल देता हूँ भाई मैं आप पर। मैं जिसको मांगता हूँ मुसल्ले पे रात भर, है उसका भाई जान तारुफ ये मुख्तसर। तन्हा वो कायनात वफा का इमाम है, उस हाशमी दिलेर का अब्बास नाम है। मौला अपने भाई से कहते हैं, एक काम तुम बराए शहे लाफता करो, भाई बड़े हो अपना फरीजा अदा करो। पहले कोई शुजा कबीला पता करो, और फिर उसी कबीले में रिश्ता मेरा करो। देखो अरब में ऐसा कोई खानदान हो, जो अपने खानवादे की शाया निशान हो। बोले अकील एक है कबीला बनी किलाब, जिसकी बहादुरी का नहीं है कोई जवाब। मिल जाए आपकी जो इजाजत अबू तुराब, रिश्ता में लेके जाऊं वहां आपका जनाब। बुज़दिल नहीं है कोई वहां सब दिलेर है, अफराद उस कबीले के मानिंद शेर।
ऐ वारिसे रसूल खुदा शेर जुल जलाल, फर्दे बनी किलाब की जुर्अत है बेमिसाल, है फन में हरबो ज़र्ब में बच्चे भी बाकमाल, नेज़ों से खेलते हैं कबीले के नौनिहाल। मौला बनी किलाब के जितने भी फर्द हैं, बस नाम के नहीं वो हकीकत में मर्द है। अच्छा एक नारा मैं लगाता हूं, दोनों हाथ बुलंद करके, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मौला बनी किलाब के जितने भी फर्द हैं, बस नाम के नहीं वो हकीकत में मर्द है। शेरो सुखन की हो या खिताबत की बात हो, सब्रो वफा की हो या शजाअत की बात हो, शजरा हसब नसब के शराफत की बात हो, मेहमान नवाजियों के सखाबत की बात हो, उनका किसी उमूर में हमसर नहीं कोई, पूरे अरब में उनके बराबर नहीं कोई, पूरे अरब में उनके बराबर नहीं कोई। जब जनाबे अकील ने बनी किलाब की तारीफ की तो मौला क्या कहते हैं, राजी है जाओ आपसे अल्लाह का वली, खुश हो के ये अकील से कहने लगे अली, पैगाम अक़्द लेके नसीम सहर चली, फिरदे जुबां था एक ही नारा गली गली, पढ़ते हुए अकील तराना खदीर का, लेकर चले हैं रिश्ता जनाबे अमीर। नारे पढ़ते हुए अकील तराना गदीर का, लेकर चले हैं रिश्ता जनाबे अमीर का, पहुंचे तरे हिजाम पे पहले किया सलाम, आपस में उसके बाद हुए दोनों हम कलाम, बोले अकील बात सुनो मोहतरम हिजाम, आया हूँ लेके आपके घर रिश्ता इमाम, ताबीर चाहिए है वफाओं के ख्वाब की, मर्जी हमें बताइए क्या है जनाब की। कहने लगे हिजाम के इमरान के पिसर, ये बाइसे शरफ है हमारे लिए खबर, रिश्ता अबू तुराब ने भेजा है मेरे घर, लेकिन जवाब दूंगा मैं बेटी से पूछ कर, रिश्ता अबू तुराब ने भेजा है मेरे घर, लेकिन जवाब दूंगा मैं बेटी से पूछ कर, पैगाम तो ये वो है कि शुक्र खुदा करे, पर उसको अख्तियार है जो फैसला करे। घर में हिजाम आके ये बोले कि लाडली बेटी तेरे नसीब की मेराज हो गई, मुझसे छुपाए आज ये छुपती नहीं खुशी, भेजा गया है तेरे लिए रिश्ता अली। अरे सोचा था कब नसीब ये सौगात पाएगा, रिश्ता हमारे घर बनी हाशिम से आए। जनाब हिजाम सलामत रखे। घर में हिजाम आके ये बोले कि लाडली बेटी तेरे नसीब की मेराज हो गई, मुझसे छुपाए आज ये छुपती नहीं खुशी, भेजा गया है तेरे लिए रिश्ता अली, सोचा था कब नसीब ये सौगात पाएगा, रिश्ता हमारे घर बनी हाशिम से आएगा। रिश्ता जनाबे हिजाम बनु हाशिम की तारीफ कर रहे हैं, बेटी बयान कैसे करूं उनका मर्तबा, करते हैं नौकरी वहां जिन्नो मलाइका, चौखट से उनकी निकला है जन्नत का रास्ता, इस खित्ते अरब में उन्हीं का है दबदबा, वो मुनफरिद कबीला है सारे जहान से, उतरी है जुल्फकार वहीं आसमान से। सलामत
कहने मौला सलामत रखे। खुदा के शेर नबी के वजीर जिंदाबाद, पैगंबरों के वली दस्तगीर जिंदाबाद, है सब फकीर जनाबे अमीर जिंदाबाद, लगाओ झूम के नारा गदीर जिंदाबाद। अली के चाहने वालों ये काम करना है, मुनाफिकीन का जीना हराम का। आगे 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 लोला और हमारी कोई बहुत बड़ी गुजारिश नहीं, बस इतनी सी गुजारिश है, जो है तहरीर वो तकरीर में लाया जाए, जो है तहरीर वो तकरीर में लाया जाए, रुख से तारीख के पर्दा ये हटाया जाए। हम अली वालों की इतनी सी गुजारिश है, फकत कौन है कातिल ज़हरा ये बताया जाए। बेटी यार बेटी बयान कैसे करूं उनका मर्तबा, करते हैं नौकरी वहां जिन्नो मलाइका, चौखट से उनकी निकला है जन्नत का रास्ता, इस खित्ते अरब में उन्हीं का है दबदबा, वो मुनफरिद कबीला है सारे जहान से, उतरी है जुल्फकार वहीं। इस्तकबाल बनता है, इस्तकबाल कर लीजिएगा। जो ये समझ के यहाँ बैठे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं, वो भी दाद दे दे इस पर। उतरी है जुल्फकार वहीं, जनाबे हिजाम कहते अल्लाह का कलाम उतारा गया वहीं, केसूए दीन हक भी संवारा गया वहीं, बेटी फलक से टूट के तारा गया वहीं, बेटी फलक से टूट के तारा गया वहीं, देखो नसीब लेके तुम्हारा गया वहीं। अरे बेटी बनी किलाब की इज्जत बढ़ाओगी, जिस घर में फातिमा थी उसी घर में जाओ। मिलती हिलती किसने फदा को लूटा है सब जानती है ये, किसने फदा को लूटा है सब जानती है ये, अपना पराया कौन है पहचानती है ये, जिसने अली को माना उसे मानती है ये, हर हाल कर गुजरती है जो ठानती है ये। अरे ये है कनीज बिन्त जनाबे रसूल की, तलवार है अली की सहेली पतो। आगे 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 नारा आगे। अल्लाह का कलाम उतारा गया वहीं, गेसूए दीन हक भी संवारा गया वहीं, बेटी फलक से टूट के तारा गया वहीं, देखो नसीब लेके तुम्हारा गया वहीं, बेटी बनी किलाब की इज्जत बढ़ाओगी, जिस घर में फातिमा थी उसी घर में जाओगी। जब जनाबे हिजाम ने शहजादी उम्मुल बनीन से कहा तो शहजादी ने क्या कहा, अगर बात आपके दिलों तक पहुंच जाए तो दाद मुझे नहीं, शहजादी के हक में जाना चाहिए। जब जनाबे हिजाम ने कहा, शहजादी ने क्या कहा, बाबा मैं देखती हूं कई दिन से एक ख्वाब, तारे हैं तीन गिर्द मेरे एक माहताब, दामन में आ रहे हैं बसद शौक को इज़्तिराब,
ताबीर काश ख्वाब की हो जाए दस्तयाब, बोले हिजाम दी का मददगार है कोई, उस चांद से मुराद अलमदार है रिश्ता अबू तुराब का लो हो गया कबूल, मांगी हुई दुआओं की कीमत हुई वसूल, तामीर करबला के मतालिब हुए हुसूल, उम्मुल बनी चली है सुए खानाए बतूल, शोहरत है आज अर्श उला पर जमीन की, शादी अली से हो गई उम्मुल बनीन की, उम्मुल बनीन पहुंची जो शेरे खुदा के घर, पहले दरे बतूल पे रखा अदब से सर, ठहरी है जाके ज़ैनब कुलसूम पर नजर, बोली हसन हुसैन की पेशानी चूम कर, अरे खिदमत गुजारे बिन्ते जनाबे रसूल हूँ, बच्चों में मां नहीं हूँ कनीज़े बतौर। नारा हैदर हैदर, आवाज़ वाला नारा सलवा। आप सलामत हैं। नारा हैदरी। उम्मुल बनीन पहुंची जो शेरे खुदा के घर, पहले दरे बतूल पे रखा अदब से सर, ठहरी थकना मत, ठहरी है जाके ज़ैनब कुलसूम पर नजर, बोली हसन हुसैन की पेशानी चूम कर, खिदमत गुजार बिन्त जनाबे रसूल हूँ, बच्चों में मां नहीं, भाई बच्चों में मां नहीं हूँ। आपकी नजर करता हूं ये बंद, अब आगाज करूंगा ना मुसद्दस का, ये तो तमहीद हो रही थी, जैसे जाकिरीन तमहीद लेते हैं ना। हाँ, खिदमत गुजार बिन्त जनाबे रसूल हूँ, बच्चों में मां नहीं हूँ कनीज़े बतूल हो, उम्मुल बनी कशीर लहू बू तुराब का, हाशिम का गैज़ रोब जनाबे किलाब का, महवर दुआए बिन्त रिसालत मुआब का, शजरा जहां से आला है आली जनाब का, कुदरत की बारगाह का अलमास कौन है, लो अब सुनो बताता हूँ अब्बास कौन। उम्मुल बनी कशीर लहू बू तुराब का, हाशिम का गैज़ रोब जनाबे किलाब का, महवर दुआए बिन्ते रिसालत मुआब का, शजरा जहां से आला है आली जनाब का, कुदरत की बारगाह का अलमास कौन है, लो अब सुनो बताता हूं, देती है जिसको दादे शजाअत अली की जात, करती है नाज जिस पे वफाओं की कायनात, बाकी है जिसका आज भी कब्जा लबे फुरात, है मजहरे सिफात खुदा के सभी सिफात, इतनी मुशाबहत थी के शेरे चली लगा, जो रोज देखते थे उन्हें भी अली लगा, परवान ये चढ़ा है शरीयत की गोद में, खोली है इसने आंख इमामत की गोद में, गुट्टी वफा की पी है विलायत की गोद में, तूफान ये पला है कयामत की गोद में, अरे ये भी फजीलतों में फजीलत कमाल है, अब्बास कायनात में दो माँ का लाल है। ये भी फजीलतों में फजीलत कमाल है, अब्बास कायनात में दो माँ का लाल है, जब कुछ बरस का हो गया उम्मुल बनी का लाल, एक दिन जरी से बोले ये सुल्तान जुल जलाल, करना है आज बाग यहूदी की देखभाल, दाखिल न होने पाए कोई भी रहे ख्याल, बोला जरी के अब तो वफा का सवाल है, रख दे कदम जो बाग में किसकी मजाल।
एकदम सुकूत ठहर गया कायनात में। घर से अली निकलते हैं फिर आधी रात में, रहवार पर सवार थे तलवार हाथ में, बस दो दो हाथ करने को गाजी के साथ अबू सर भाई कैमरा इधर कर देना, मैं बंद पड़ रहा हूं। जिस दम सुकूत ठहर गया कायनात में, घर से अली निकलते हैं फिर आधी रात में। आपकी तरफ से अभी मैं नारा लगवा लूंगा, आपसे फिर से लगवा लूंगा, माफी चाहता हूं। जिस दम सुकूत ठहर गया कायनात में, घर से अली निकलते हैं फिर आधी रात में, रहवार पर सवार थे तलवार हाथ में, बस दो दो हाथ करने को गाजी के साथ में। बैतुल शरफ से फातह खैबर निकल पड़े, रुख पर नकाब डाल के हैदर निकल पड़े। शेरे अली पुकारा खबरदार लौट जा, दाखिल न हो न बाग में जिन्हार लौट जा, थोड़ा बहुत अगर है समझदार लौट जा, क्या अपनी जिंदगी से नहीं प्यार लौट जा। अरे ये बात डाल लीजिए अपने दिमाग में, बेमौत मारे जाओगे आए जो बाग में। चुपचाप हो के खुद में मगन साहिबे शरफ, साबित कदम थे सामने नजरों के था हदफ, तेवर जरी के देख के फिर भी शहे नजफ, बढ़ते रहे कदम ब कदम बाग की तरफ। जुर्अत ये कह रही थी जरा टोक कर दिखा, आता हूँ बाग में तू मुझे रोक कर दिखा। फिर की जरी ने गैज में तलवार बेनियाम, कब्जे में हाथ डाल के लहराई जो हुसाम, बोला जरी के करता हूँ किस्सा तेरा तमाम। फिर दो दो हाथ दश्त में करने लगे इमाम। अरे मंजर फलक पे देख के जिब्रील दंग है, जंगल में आज दोनों अली महवे जंग। मुनफरिद रहमत यज़दान की सौगात है दोस्त, है कहीं अब्र करम और कहीं बरसात है दोस्त, है पिसर चश्मे बसारत तो कभी हाथ है दोस्त, खौफ खाते हैं उदू जंग में गर साथ है दोस्त। बस बहादुर ही नहीं साहिब किरदार भी हो, कितना अच्छा है अगर दोस्त आजादार। अय्युहन्नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, शब जुल्मत में उम्मीदों का सितारा है दोस्त, कश्ती ज़ीस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, बिस्ल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त। अरे दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छुड़ा ले। दोस्ती जैसा कोई रिश्ता पुरजोश नहीं, दोस्ती रहती है नेज़े पे भी खामोश नहीं, दोस्ती जैसी कोई दूसरी आगोश नहीं, दोस्ती को कभी करिएगा फरामोश नहीं। तुरबते इब्ने मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पाती है, खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं। अरे फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातम हलकों में खड़े। क्या कहने सलामत उधर फरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, अली के शेर इधर मुस्कुराए जाते हैं, दरे हुसैन पे आ जाइए के पत्थर भी यहाँ तराश के हीरे बनाए जाते हैं। अगर वो साहिब किरदार थे तो बतलाओ, नबी की बज़्म से फिर क्यों भगाए जाते हैं। मेरी नजर में वो
महफिल नहीं नुमाइश है जहां बतूल के कातिल छुपाए। आप हजरात बस 5 मिनट बैठे हैं, 2 कोरे होने हैं और तबर्रुक भी लेके जाइएगा, ये ऐलान है, बगैर तबर्रुक लिए कोई जाएगा नहीं, तबर्रुक भी लेके जाएंगे। 2 कोरे हैं। सबसे पहला कोरा जो खुसूसी है, 10 लोगों का रईस भाई के, वो मेरा ख्याल है 9 रतन क्या 10 रतन हैं, ये हर साल इन लोगों का होता है। अब ये 10 लोगों के नाम हैं, जिसके जिसके मैं नाम लूँगा वो लोग आएँ और ख़ुद अपनी पर्ची इसमें डालते रहें ताकि उनके सामने मालूम रहे कि उनकी पर्ची है 10 लोगों की। लेकिन उससे पहले खुद ज़ियारत के सिलसिले में एक रिवायत अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह नहीं कहा था क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत के सिलसिले में एक रिवायत अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। अभी मैं रिवायत पढ़ रहा था इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इमाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई ज़ायर करबला आता है तो उसे खुद एहसास नहीं है कि उसकी ज़ियारत से नबी कितना खुश होते हैं, ज़हरा कितना खुश होती हैं, अइम्मा मासूमीन कितना खुश होते हैं। हर इंसान ये चाहता है कि जन्नत सिर्फ नहीं जाए बल्कि जन्नत में उस महल्ले में जाए जिस महल्ले में रसूल रहेंगे, जिस महल्ले में अइम्मा रहेंगे। जन्नत तो सब पहुंच जाएंगे, बहुत से लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन जो ज़ाहिर इमाम हुसैन है उसे ज़हरा अपने महल्ले में जगह देंगी, जो ज़ाहिर इमाम हुसैन है। और फिर रवायत है कि ये इसके हर कदम जो उठते हैं ना, अभी चंदन भाई ने एक शेर पढ़ा था कि करबला पहुंच गए और थके नहीं, उसके हर कदम जो करबला के समत उठते हैं, हर एक कदम पर उसके 100 गुनाह माफ़ होते हैं, 100 नेकियां लिखी जाती हैं, 100 दर्जात में इजाफा होता है हर एक कदम पर। जो लोग हैं जिसका नाम आएगा वो तो ज़ाहिर होगा, जिसका नाम नहीं आएगा वो घर बैठे उन कदमों में शरीक हो जाएगा जो ज़ाहिर उठाएगा। तो इसलिए चाहिए 10 लोगों की फेहरिस्त हो या इसके बाद 355 चलो करबला वालों की, वो भी कोरा होना है। तो जो लोग भी जिनका नाम आ रहा है उनको मुबारक, और जिनका नहीं आ रहा है बिना जाए हुए भी वो कदम में इंशाअल्लाह शरीक होंगे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद। ये 10 लोग में सबसे पहले सलमान हसन रईस साहब मंजनपुर। आइए तशरीफ ले आइए। ये आप ही की है सलमान हसन? कैमरा जूम कर लेंगे क्या है? रईस भाई की पर्ची मौलाना कौसर अब्बास साहब, राशिद रिजवी एडवोकेट करारी, इनकी पर्ची शमीम भाई, मौलाना शहनशाह हुसैन साहब हैं नहीं, शायद कोई उनका नुमाइंदा आ जाए, आप डाल दीजिए। शहनशाह हुसैन साहब जी जी मैंने देख लिया है। फाजिल भाई, मौलाना फाजिल साहब, नज़ीर अब्बास नन्हे, नज़ीर अब्बास साहब नन्हे, आगे बेटे आगे। ठीक। शमीम रजा, शमीम रजा साहब, अच्छा आप ही हैं। शबीहुल अब्बास साहब पाता मंजनपुर, शबीहुल अब्बास साहब कह रहे हैं कि वो खुद ही डाल दें। अच्छा शबीहुल अब्बास साहब। हसन सादिक साहब मुन्ना भाई दरवाजे पे खड़े हैं, आइए। अलैकुम अस्सलाम। और राकिब, नाना की जिम्मेदारी कहाँ है? नाना की जिम्मेदारी संभालें, आ गए। सरफराज हुसैन साहब, सरफराज साहब यहाँ पे बैठे हुए थे। हुसैन आइए, आप ही भांजे आ जाएं, वो आपको नायब बना रहे हैं। आखिरी नाम
हैदर अब्बास राजू साहब, आपका नहीं है? हैदर अब्बास राजू साहब पाता के हैं ये भी, कोई भी नुमाइंदा आ जाए। नहीं नहीं, ये 9 नाम जो इसमें हैं हो गए, आ गए। बिस्मिल्लाह। ये एक नाम पिछले साल निकल चुका था। अब ये 10 लोगों को, इनके कानून में ये है कि पिछले साल जो निकल चुका था पैसा दिया उन्होंने, लेकिन इनका नाम नहीं डाला जा रहा है, ये खुद कानून है। ये 10 लोगों की हो गई, इसको निकाल दो। 9 लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 है। आप भी थोड़ा सा आइए। कोई बच्चा जिसने नारा लगाया हो, जो बच्चे वो उठे, आ जाओ। जिस बच्चे ने नारा लगाया हो, एक बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह। बस 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 हो गया। रुक जाओ बाबू, रुको। कहाँ जा रहे बेटा? बेटा कहाँ जा रहे? इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आदमी अपने हाथ से 2-2 पर्ची डालेगा तो एक तो आएगी। शमीम भाई का नाम आया, एक राशिद भाई की डाली थी इन्होंने, शमीम रजा साहब। आइए माशाल्लाह। 14 साल से ये डाल रहे हैं पर्चियां, 14 साल से। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह सबकी दुआएं आप लेके जाएं। एक और 355 चलो करबला वालों का। वो डिब्बा और उसकी लिस्ट कहाँ है? चलो करबला वालों। चलो करबला वाले लाइव देख रहे हैं तो मोबाइल पे मेरे भेज दें पूरी लिस्ट। लिस्ट नहीं आई मेरे पास। पता नहीं चलेगा किसका है। इसको कायदा आपने मजमा हिला डाला, इसको ये क्या है? ये तो आप अच्छा हिला। 58वां दौर है 58 और इसमें तकरीबन 35 राउंड के लोग जा चुके हैं। बाकी जो नहीं गए हैं वो या तो उनका पासपोर्ट नहीं है या दीगर कोई मुश्किलात हैं। इसके कानून में ये है कि 1 साल टाइम दिया जाता है जिसका नाम आता है। तकरीबन मेरा ख्याल है 20-25 तो मैंने ही ये लकी ड्रा निकाले हैं यहाँ भी, और तकरीबन हर मुक़द्दस मकाम पे, यानी मुझे याद है जो जनाब सकीना के हरम में, जनाब ज़ैनब के हरम में, करबला मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास, इमाम हुसैन में, नजफ़ में, कूफा में, काज़मैन में, कुम में, मशहद में, जमकरान में, ये सारी जगह मुझे याद है जहाँ पे मैंने खुद ये ड्रा निकाले हैं और ये लोग तकरीबन 30-35 लोग जा चुके हैं। इसमें ये 58वां राउंड है, 58th राउंड, और जो नाम निकला है 251, 251 नंबर, 251 नंबर ये आया है। अब इसमें मुझे देखना पड़ेगा 251 किसका है। जिसका बहरहाल है इसको जूम कर दीजिए जब तक आप, जिसका है वो लोग तो देख ही चुके होंगे अब तक कि 251 किसका है। इसमें होता ही है कि 355 रुपये देने हैं। 313 अफराद होते हैं रसीद लेने वाले, और उसमें 355 पहले 313 ही था, लेकिन चूंकि बढ़ गया, अमाउंट बढ़ गया ज़ियारत का, तो इसलिए अब 355 हो गया है। ये है 251, 245 तक मैं आ गया। बस बस बस
251 बानिए अज़ा हिंदुस्तान हजरत मीरा सैयद हुसैन सैयद सैयद रहबर अब्बास तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर के सैयद रहबर अब्बास साहब जिन्होंने बानी अज़ा हिंदुस्तान हज़रत मीरा सैयद हुसैन जिनके वहाँ पे दरगाह है उनके नाम से ये रसीद ली थी, उनको मुबारक हो और तमाम अफराद को मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप हजरात रूबा क़िबला हो जाएं, दुआए फ़रज पढ़ लेते हैं, दुआए फ़रज पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह व फी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला।